the MBA in the defense production. Okay, can we continue? Yes, yes. Yeah, Yes, sir. we'll continue. इकडनं तू यायला joiners नव्हते तू. I think we'll go for a next slide. कुठला click कर. Yeah. Now, typically, I have considered the students' problem related to curricular activities, इकडनं तू co-curricular Audio लागतच activities, नको joiner पण ते extracurricular activities, and in the personal domain. So these four parts I have made it. Students face problem related to understanding the curricula, that is academic, then co-curricula, that is adjacent to academic but little bit off the syllabus, and extracurricular, which is basically sports, cultural, NSS, NCC, and other domain. Let's see what are the different problems students face when they would like to address the curricular activities. That is constructive approach towards teaching learning process. Just hold on. काहीतरी काम आलं. Sorry to have an interruption. We'll continue with the thing. Constructive approach towards teaching learning process, that is curricular activities. Now, typically what we have seen that when we go to the class and try to teach the student, some of the students don't understand anything because when we realize that their background knowledge of the topic is missing. हम लोग जब भी क्लास लेने जाते हैं तो पता चलता है कुछ लोगों को बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम कोई भी क्लास शुरू करते हैं तो KG1 KG2 से तो शुरू नहीं करते. हम मान लो फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में जब शुरू कर रहे हैं तो ये तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि 12वीं तक का उनका बैकग्राउंड सेम है, उनको आता है. अब होता क्या है, जनरली 11th 12th में स्टूडेंट्स मान लो 60% मार्क्स लेके आते हैं, इसका मतलब 40% तो उनको आता ही नहीं है. और आजकल की जो स्टाइल है पढ़ाई की कि वो बहुत सारा पोर्शन ऑप्शन में डालते हैं, तो नेचुरली हम जो बैकग्राउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट को होता ही नहीं है. So we have to consolidate to begin with. Before we start the first session, we have to consolidate whether the background knowledge required for a particular topic is available with the student or otherwise. Now, if it is not available with the student, typically whatever best teaching methods we apply and adopt, as the background is not there, students are not likely to understand anything else. Many students are shy and they are afraid of telling the teacher that I don't have this background. When he's aware that the entire class is having the background except me, that's what is his feeling. So he will definitely shy away from sharing this with the teacher that I don't know the previous thing. I don't know the background. Please recap the background. Please little bit throw light on the background and then start teaching your current topic. So naturally, we have to ensure whether the background knowledge of the topic is available. I have been teaching for last 41 years in engineering, teaching mechanical engineering subjects involving differential calculus as well. Now what we have seen, whatever thing I am trying to state now, those who are having background of derivative, differential calculus can little bit understand. Others, if you don't understand, skip it. It's not having that close relevance with the today's topic. That when we start teaching engineering and for certain phenomena, we want to use the second degree differential equation. And when we write dy by dx,
Some student cut d and d and simplify it to y by x. Now we cannot teach this. Now this type of blunder, that not understanding the concept of dy by dx, considering d into x and d into y and cutting both the d's, typically that means they do not know the differential equation, differential calculus of 11th and 12th. When we start teaching in engineering, we can't teach them differential calculus. But however, we must check the background of the student, whether I think somebody, Himanshu Garg has said that I should go in Hindi. No issue. चलिए हिंदी में बात करते हैं. अगर dy by dx का dd काट दिया तो उनको तो डिफरेंशियल की कंसेप्ट ही पता नहीं है, तो आगे का इंजीनियरिंग पढ़ाने में कोई मतलब नहीं है. तो बैकग्राउंड नॉलेज टॉपिक का है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है. मान लो कि पूरे क्लास का बैकग्राउंड नॉलेज अगर अपने टॉपिक लायक नहीं है, तो एक ब्रिजअप कोर्स या ब्रिजअप सेशन रखना जरूरी है कि वॉट एवर दे लर्न अप टू अर्लियर ईयर एंड व्हाट दे आर सपोज टू लर्न दिस ईयर. एक ब्रिजअप सेशन ले लिया हमने या 2-3 पीरियड ले लिए ब्रिजअप के, तो नेचुरली दे विल कम टू द लेवल. वो एक लेवल में आएंगे जहां जिसके बाद हम पढ़ाना शुरू कर सकते और उनको समझेंगे हम जो पढ़ाएंगे वो. क्योंकि ऐसे ही सिलेबस खत्म करके फायदा नहीं है. सिलेबस जो भी हम खत्म कर रहे हैं वो बच्चों को समझने के बाद खत्म कर रहे हैं. अगर बच्चे पीछे छूट जाए और हम लोग आगे चले जाते तो उसका मतलब होगा कि हम ब्लैक बोर्ड को सिखा रहे हैं, स्टूडेंट को तो सिखा ही नहीं रहे. तो बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द टॉपिक ये बच्चों से इंश्योर करना जरूरी है. क्लास में जैसे हम कहते हैं हैव यू स्टडीड दिस, ये पढ़ा है क्या आपने, 2-4-5 हाथ ऊपर आते, हम लोग कंक्लूड करते कि सबको आता है. ऐसा नहीं. आप किसी को, एक को, 2 को, 3 को उठा के पूछिए, 2-3 लोगों को उठा के पूछिए कि हैव यू अंडरस्टूड, ओके बताओ मेरे को इसका आंसर क्या है, या ब्लैक बोर्ड पे आके बताओ आपको समझा कि नहीं समझा. ये सारी चीज आपको करने के बाद टीचिंग शुरू करना है. सेकंड इशू क्या होता है, बच्चे जब क्लास में आते हैं ना तो पिछले हफ्ते का पूरा पढ़ के नहीं आते, पिछले हफ्ते का बिल्कुल पढ़ के नहीं आते, ऐसे ही आ जाते. तो उनको पिछले पीरियड में हमने क्या पढ़ाया था इसका रिकैप लेना जरूरी है. ऐसे नहीं कि उनका बैकग्राउंड कच्चा है, ऐसे नहीं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कच्ची है, उन्होंने पिछले पीरियड में हमने क्या पढ़ाया ये पढ़ के ही नहीं आए हैं. और हम कंटिन्यूटी में अगर इस पीरियड का सिखाना शुरू कर देंगे तो उनको कुछ भी नहीं समझेगा. हालांकि उनकी आईक्यू अच्छी है, उनका ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, लेकिन प्रीवियस सेशन का वो पढ़ के ही नहीं आए. तो वो एक बार 5 मिनट 10 मिनट रिकैप करना जरूरी कि हमने आज तक पिछले पीरियड तक हमने क्या पढ़े और इसके आगे चलिए मेरे साथ, तो लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते. बहुत बार क्या होता है, क्लास में अलग अलग बुद्धिमत्ता के लोग होते हैं, अलग अलग आईक्यू के लोग होते हैं. अब किस स्पीड से पढ़ा है, हम अगर मान लो बहुत तेज स्पीड से पढ़ा है तो जो फास्ट लर्नर है उनको तो सब समझ में आता है, लेकिन जो एवरेज लर्नर है वो लड़खड़ाते, उनको नहीं समझ में आता है. और जो स्लो लर्नर है उनको तो कुछ भी नहीं समझ में आता है, सारा के सारा ओवरहेड ट्रांसमिशन हो जाता है. तो एंड में वो टीचर को फीडबैक देते समय कि भाई फलाने टीचर का तो समझ में नहीं आ रहा है, और हमको लगता है हम तो बेस्ट टीचर हैं, हम अच्छे टीचर माने जाते हैं क्लास में, अभी ऐसे फीडबैक कैसे आया कि कुछ भी नहीं समझ में आया. क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं ना उनको समझ में नहीं आता है, और साल भर ये बताते नहीं है कि समझ में नहीं आता है, और साल के एंड में फीडबैक दे देते कि हमें कुछ भी नहीं समझा. हमें ये देखना जरूरी है कि क्लास में कुछ स्लो लर्नर है, कुछ एवरेज लर्नर है, कुछ फास्ट लर्नर है. अगर फास्ट के स्पीड से जाएंगे तो स्लो को कुछ नहीं समझेगा, अगर स्लो लर्नर के स्पीड से जाएंगे बिल्कुल धीरे धीरे जाएंगे तो फास्ट लर्नर्स को लगेगा ये तो हमारा आज आना वेस्ट ही हो गया, सर ने जो भी आज पूरे पीरियड में पढ़ाया और हमने 10 मिनट में घर में कर लिया था, आज का तो दिन खराब हो गया, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम. अब पढ़ाए तो किस स्पीड से पढ़ाए, ये मेजर चैलेंज है टीचर के सामने. अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग संस्था के मैंने पिछले 30-40 साल से पढ़ाया है, तो पता चला पढ़ाने का स्पीड क्या रखना है. मान लो टीचर वर्सटाइल है, वो किसी भी स्पीड से पढ़ा सकता है, स्लो स्पीड से पढ़ा सकता है, मीडियम स्पीड से पढ़ा सकता है, फास्ट स्पीड से पढ़ा सकता है, लेकिन कौन से स्पीड से पढ़ाए वो कि सारे बच्चों को समझे. तो ऐसा होता नहीं है, सारे बच्चों को समझना बड़ा डिफिकल्ट है.
हम देखेंगे आगे के कुछ पॉइंट्स में इसको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। एक तो ग्रुप स्टडी टेक्निक जो होता है ना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, Dr. Nisha is saying that I should speak both in English and Hindi. I mean, I'm comfortable with both the language. The idea is that all of you should understand. I will try to make a mix of it. Look here. Now, what happens? I generally used to make a group of a student where one is fast learner, two students are average learners, and around three students are slow learner. ऐसा एक ग्रुप बना दीजिए कि एक तेज पढ़ने वाला, एक मध्यम पढ़ने वाला, मतलब दो मध्यम पढ़ने वाले और तीन स्लो लर्नर। तो होता क्या है, ये तीनों का ग्रुप बना दिया हमने और एवरेज स्पीड से उनको अगर इनपुट दिया तो जो फास्ट लर्नर है उसको एजेंडा देना है कि भाई आपके ग्रुप के बच्चों को समझना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी। ग्रुप स्टडी के लिए थोड़ा समय देना चाहिए, एक उनको ट्यूटोरियल शीट देना चाहिए। ट्यूटोरियल शीट का मतलब होता है हमने अभी तक जो उनको पढ़ाया उसके ऊपर के न्यूमेरिकल, उसके ऊपर के एग्जाम्पल, सो दैट अब फास्ट लर्नर जो है वो तो पूरा दन 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 कर देगा, पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देगा। मीडियम लर्नर जो है, एवरेज लर्नर है, वो थोड़े स्ट्रगल करेंगे, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम उनको आएंगे, थोड़े नहीं आएंगे। और वो फास्ट लर्नर वो एवरेज लर्नर को पढ़ा देगा जो प्रॉब्लम उनको नहीं आते। और ये एक फास्ट लर्नर और दो एवरेज लर्नर, ये तीन मिलके तीन स्लो लर्नर को वन टू वन उनकी सारी डिफिकल्टी समझाएंगे, उनको अच्छी तरह समझाएंगे। ये क्या है, हम ब्रिज कर रहे, तीन स्पीड को ब्रिज कर रहे। और क्लास में हमारे पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, एवरेज स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड। एवरेज स्टूडेंट का स्पीड रखिए और बीच में 15 मिनट पढ़ाने के बाद 5 मिनट गैप दीजिए, 5 मिनट थोड़ा सा सहूलियत दीजिए बच्चों को to assimilate what you have taught and ask them to sit in the group, so that what happens, the fast learner will try to explain the thing to the slow learner and average learner in those 5 minutes. इससे होता क्या है, क्लास की मोनोटोनी भी ब्रेक होती है कि भाई टीचर पढ़ा रहा है, लाइन से टीचर पढ़ाते जा रहा, पूरा 1 घंटा अगर टीचर बात करेगा तो सभी बच्चों को कोई रोल ही नहीं है, उनको केवल श्रवण भक्ति करनी है। तो उनको पीरियड होता है बोर, और 2-3 पीरियड के बाद उनको लगता है बहुत अभी थक गए, कैंटीन जाना चाहिए, कुछ तो भी खाना चाहिए, चाय पीना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? टीचिंग ये एंजॉइंग एक्टिविटी होना चाहिए, बोरिंग एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। इसलिए मोनोलॉग को 15 मिनट के बाद होल्ड करना है, बंद करना है। ब्लैक बोर्ड के साथ हम जो सिखा रहे बच्चों को 15 मिनट तक सिखाना मैक्सिमम, 5 मिनट का ब्रेक देना और सबको कहना कि मैंने जो 15 मिनट पढ़ाया वो आपको समझा कि नहीं, देख लो एक बार। और फास्ट लर्नर को अपील करना कि देखिए तुम्हारे ग्रुप के सबको आना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो एवरेज और फास्ट लर्नर मिलके स्लो लर्नर को पढ़ा देते हैं और 5 मिनट के बाद पता चला पहले 15 मिनट में हमने पढ़ाया, अभी पूरे क्लास को आ रहा है। होता क्या है, ये 5 मिनट में फास्ट लर्नर बिजी रहता है तो उसको ये नहीं लगता कि मेरा समय बर्बाद हो गया। स्लो लर्नर को सभी समझ में आता है, इसलिए अगले क्लास का अटेंडेंस आपका अच्छा रहता है। और फास्ट लर्नर के प्रति स्लो लर्नर के मन में आदर युक्त भावना आती है। डेफिनेटली व्हेन यू लर्न इन अ ग्रुप स्टडी यू डेवलप ए सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, because all the fast learners, for a slow learner, they are like a gurus, they are like a teacher, and therefore you find the cooperation, coordination within the class increases, the brotherhood increases. At the same time everybody think that मैं घर में बैठूंगा तो मुझे नहीं आएगा, मैं क्लास में जाता हूं ना तो मुझे सब कुछ आ रहा है। So they will have more affiliation, affection for attending the college. कॉलेज का अटेंडेंस बढ़ेगा। लेकिन ये इसके लिए आपको क्लास के शुरू में या पिछले साल के रिजल्ट के हिसाब से डिफरेंशिएटिंग बिटवीन स्लो लर्नर फास्ट लर्नर करना बहुत जरूरी है। क्लास में मान लो 60 बच्चे हैं तो कितने तेज है, फास्ट लर्नर कितने हैं? भाई 12-15 लोग फास्ट लर्नर है, बीच के 30-35 लोग जो है वो एवरेज लर्नर है, आखिरी के 10-15 लोग स्लो लर्नर है। आइडेंटिफाई करो उनको, उनकी ग्रुपिंग करो, उनको ग्रुप स्टडी में पढ़ाई के लिए उद्युक्त करो। ऐसा देखा गया है विश्व में जितना सारा ज्ञान है, बाय बर्थ नोबडी नोज एनीथिंग। सी वी लर्न एवरीथिंग आफ्टर द बर्थ। हमने अपने हाथों से खाना खाना भी जन्म के बाद ही सीखा है, हमने पैरों पे चलना भी जन्म के बाद ही सीखा है, ABCD लिखना भी जन्म के बाद ही सीखा है। सारी चीजें हमने जन्म के बाद सीखी है।
जन्म लेते हमें कुछ ज्ञान नहीं था, इसका मतलब सारा ज्ञान हम एक्वायर किया है आफ्टर द बर्थ। लेकिन आफ्टर द बर्थ ये पूरे विश्व का ज्ञान हम जो एक्वायर करते हैं, आत्मसात करते हैं, एसिमुलेट करते हैं, इसकी एक थ्योरी है। क्या थ्योरी है? ऐसा कहते हैं जो भी विश्व में ज्ञान है उसका 70% नॉलेज व्यक्ति सेल्फ स्टडी से आत्मसात कर सकता है। यू कैन एक्वायर 70% ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड बाय सेल्फ स्टडी। Then 70 to 90% knowledge of the world you can learn in a group study. ग्रुप स्टडी का मतलब क्या होता है? आपसे सीनियर स्टूडेंट है या आपके टीचर है, पेरेंट्स है, इनका ग्रुप नहीं, आपके साथ जो पढ़ रहे हैं उनका ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज पीयर ग्रुप। ये जो पीयर ग्रुप होता है मतलब आपकी बुद्धि के लोग, आपके इतना ही ज्ञान रहने वाले लोग, लेकिन होता है 10 चीजें अगर सबको पढ़ाई तो किसी को 5 आती है, किसी को 8 आती है, किसी को 3 आती है। अब किसी को जो 5 आती है, 3 आती है, 8 आती है, सबको सेम नहीं आती ना। जैसे मुझे अगर 1 2 3 4 5 आ गया तो हो सकता है मेरे दोस्त को 4 5 6 7 8 आएगा पॉइंट। तो हम मैं और दोस्त मिलके 1 to 8 हम सीख सकते हैं। कुछ पॉइंट मुझे आए, कुछ पॉइंट उसको आए। अगर हम शेयर करते हैं तो नेचुरली हमको 1 से 8 तक पॉइंट आ जाएंगे। ऐसे 5 का ग्रुप अगर बनाए और ग्रुप में सारी चीजें शेयर की तो पता चला इंडिविजुअली घर में पढ़ाई करेंगे तो 70% नॉलेज आ जाता है, ग्रुप में पढ़ाई करेंगे तो 70% का नॉलेज 90% तक चला जाता है, और आखिरी के 10% के लिए आपको टीचर लगता है। 0 to 90% आप बिना टीचर के पढ़ सकते, एकलव्य टेक्निक। इसमें 70% तो अपना आइसोलेशन में पढ़ सकते हैं। हम घर में बैठे बुक पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं इंटरनेट पे, ये इससे हम सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। 70 से 90 ग्रुप स्टडी से। अब होता क्या है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में हम सारे के सारे पीरियड लेते, साल भर मान लो एक सब्जेक्ट के 50 पीरियड ले रहे, 60 पीरियड ले रहे। मेजॉरिटी ऑफ द टीचर ये सारे 60 पीरियड पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब मोनोलॉग पढ़ाते हैं। हालांकि बच्चों को पढ़ाना है आखिरी के 10%, 90% तो उनको ही करना है। कैन वी जनरेट ए लर्निंग एनवायरमेंट इन प्लेस ऑफ टीचिंग एनवायरमेंट? हम टीचिंग एनवायरमेंट करते हैं, टीचर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है इसके अंदर। टीचर आए तो कोर्स आगे बढ़ेगा, टीचर नहीं आए तो कोर्स आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों ना हम ग्रुप बना दे बच्चों के और मॉनिटर बना दे क्लास के, और उनको कहे कि टीचर अगर अब्सेंट भी है तो भी क्लास चलेगा। एक संकल्पना उनको देके रखी कि ये आपको पढ़ना है खुद होके, और टीचर में क्लास में आने, नेक्स्ट क्लास में आने के पहले इसमें से 90% आपको आना चाहिए। सभी बच्चे घर अपने अपने घर में पढ़ के आइए, करीबन 70% सबको आ जाएगा। हो सकता है जिसमें से फास्ट लर्नर उनको 80% आएगा, जो मीडियम लर्नर है उनको 70% आएगा, जो स्लो लर्नर है उनको 85% आएगा, हो सकता है। लेकिन जब वो कॉलेज में आके, क्लास में आके ग्रुप स्टडी करते हैं तो एक दूसरे का नॉलेज शेयर करते हैं, तो कलेक्टिवली पूरा ग्रुप मिलके उनकी नॉलेज लेवल 90% तक जा सकती है। ऐसे 10% जरूर कुछ एग्जाम्पल होंगे, कुछ इश्यूज होंगे जो पूरे के पूरे ग्रुप को समझ में नहीं आ रहे। टीचर ने अपना वक्त केवल उस 10% पे फोकस करना चाहिए, बाकी 0 to 90% जो है वो रिवाइज करना चाहिए, एक विजिट करनी चाहिए उसको। वो डिटेल में नहीं पढ़ाना चाहिए जो बच्चों को अपने आप आ रहा है। बच्चों को जो बिल्कुल ही नहीं आ रहा उसके लिए टीचर ने अपना समय वहां प्लान करना चाहिए। अगर हम लोग इस प्रकार का 3 चीजें मैंने इसके अंदर बताई, मैं रीट्रेट करता हूं। पहले तो देखना कि एडिक्वेट बैकग्राउंड नॉलेज बच्चों को है कि नहीं जो हम पढ़ा रहे, फिर पिछले पीरियड में जो किया उसका रिकैप करो। उसके बाद में स्लो लर्नर, एवरेज लर्नर और फास्ट लर्नर, ये 3 हिस्सों में पूरे क्लास को आप इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर उनको एक ट्यूटोरियल शीट देना। ट्यूटोरियल शीट का मतलब क्या होता है, टीचर ने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, फिर भी उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उनको देना है। कुछ चीज पढ़ाई है तो कुछ अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल उनको दे दो, और कुछ आगे अगले हफ्ते हम जो पढ़ाने वाले उसका कुछ सिलेबस है, एजेंडा उनको दे दो। और ये ट्यूटोरियल पे उनको काम करना है, सेल्फ स्टडी, ग्रुप स्टडी। और सबको अपील करना है, सेल्फ स्टडी में मान लो कोई कच्चा बच्चा है, 70% नहीं कर पा रहा, 30% ही कर पा रहा है, तो बाकी बच्चे हैं ना एवरेज और अबव एवरेज बच्चे, उन्होंने उसको 30% से 90% तक लाना है।
मानो कि होशियार लड़के वो उस ग्रुप के टीचर हैं। एक बार पूरा ग्रुप 90% तक आ गया तो आप पूरे क्लासेस फोकस कर सकते हैं। जो सबसे डिफिकल्ट चीज चल रही है, बच्चों को बिल्कुल ही नहीं आ रही, उसके ऊपर आप पूरे इसको फोकस कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी टेक्निक ये बहुत जरूरी है, इसको पहले एम्फसाइज करना जरूरी है बच्चों की भी। मेरी जरूरत आपको कब है? जब आप घर में पढ़ाई करोगे, आप ग्रुप के साथ डिस्कस करोगे, उसके बाद मेरा रोल है। अगर मेरे पीरियड के पहले ये सारी चीज आपने नहीं की है तो मेरा पूरा पीरियड आपको पढ़ाने में, वो चीज पढ़ाने में जाएंगी कि जो मेरे अब्सेंस में आप आराम से घर में कर सकते हो। वो चीज करने के लिए अपना इंटरेक्शन वेस्ट ना करो। इफ वी गो फॉर दिस एंड emphasize on them the significance of self learning skill, भाई एक एक चीज उनको हम पढ़ाने की जगह क्यों ना हमें वो सेल्फ स्टडी कैसे करना ये उनको सिखा दे एक बार। ऐसा कहते ना, कहावत है कि कितने दिन एक व्यक्ति को हम मछलियां पकड़ के देंगे, कभी ना कभी तो उसको सिखा दो एक बार मछलियां कैसे पकड़ना, उसको फिशिंग की स्किल सिखा दो तो डेली फिश देने की जरूरत नहीं है। बच्चों को सेल्फ स्टडी की स्किल सिखा दो तो डेली टीच करने की जरूरत नहीं। आप क्लास में चले जाइए, आप बैठिए चेयर पे, वहां आज 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 आप जो भी पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक ऊपर लिख दीजिए, उसकी संकल्पना ऊपर लिख दीजिए और बच्चों को कहिए आप आगे बढ़ो, आप सेल्फ स्टडी करो, बुक लाए, कॉपी लाइए, नोट लाइए, सेल्फ स्टडी करो। ग्रुप्स को बोलो कि आप ग्रुप स्टडी करो। और ये चीज मैंने 10 चीजें यहाँ लिखी, मैं आज के पीरियड में जो आपको समझाने वाला हूँ, ये 10 चीजें लिखिए। आउट ऑफ द 10 थिंग्स, just check how many things you are able to solve collectively as a group together, and then for the rest remaining which you cannot understand, I am there, I will solve your all difficulties. अगर इस प्रकार का वातावरण होता है तो क्लास मोनोटोनस, बोरिंग नहीं होगा, क्लास में चहल पहल होंगी, बच्चे एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं ग्रुप में इंटरेक्ट करने के लिए। एक ग्रुप को एक चीज नहीं आई, 5 लोगों के ग्रुप को, तो दे आर अलाउड टू टॉक विद अनदर ग्रुप। मतलब 5 का एक ग्रुप एक छोटा यूनिट हो गया, अल्टीमेटली मेगा ग्रुप जो होगा वो 60 बच्चों का मेगा ग्रुप होगा। ये 5-5 के 12 ग्रुप भी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते, समझ सकते, समझ ले सकते कि भाई हमारे ग्रुप को नहीं है, वो उनके ग्रुप को आया, किसको आया, क्या आया। बच्चों को उनमें से जो होशियार लड़के हैं, इंटेलिजेंट लड़के, उनके प्रति आदर भाव होगा, और इंटेलिजेंट लड़के बाकी बच्चों को अपना नॉलेज बांटने में, सिखाने में एक जिसको कहते हैं उनको एक अच्छा अभिमान लगेगा उनको। दे विल फील ऑनर्ड दैट आई एम एबल टू टीच अदर पीपल। और इससे एक अलग प्रकार की भावना कॉलेज में होंगी। इसमें साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत होता है। जो बच्चे दूसरों को, ऐसा कहते हैं ना, टीचर एज ए टीचर करके भी मेरा अनुभव ऐसा है, जब मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मुझे बहुत अच्छा समझता है। मैंने सब्जेक्ट पढ़ने के समय मैंने जो भी मुझे समझा था उससे अधिक मुझे समझता है जब मैं पढ़ाने लगता हूं सब्जेक्ट। अगर आप सभी टीचर करके ये चीज को मानते हो तो क्यों ना इंटेलिजेंट बच्चे कच्चे बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो वही टॉपिक उनको और अच्छी तरह से समझ में आएगा, उनका साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। स्टूडेंट्स को डायरेक्ट टीचर को डिफिकल्टी पूछने में बहुत बार संकोच होता है। मेनी स्लो लर्नर्स हेजिटेट टू आस्क द डिफिकल्टी टू टीचर, बट दे आर वेरी कंफर्टेबल टू आस्क टू देयर पीयर स्टूडेंट्स। इमीडिएटली दे आर मोस्ट कंफर्टेबल इन आस्किंग देयर डिफिकल्टी। उनको शर्म नहीं आती कि मुझे ये चीज नहीं आ रही करके। पूरे क्लास के सामने हाथ ऊपर करके टीचर को डिफिकल्टी पूछना शर्म आती है, लेकिन एक बेंच पे बैठे 3-4 लोगों में डिस्कस करने में उसको शर्म नहीं आती। कंफर्ट लेवल्स आर हाई। So this is also technique can be used for psychological confidence building. And then lastly, the counseling of the student is also required. Why counseling is required? Because जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको कंटिन्यूअसली ये समझना चाहिए कि बेटा तुम्हारे इंटेलिजेंट होने का समाज को क्या फायदा, तुम होंगे इंटेलिजेंट अपने घर के, हमको क्या फायदा। ये अप्रोच पूरे दुनिया का रहता है। अगर तुम समाज के लिए उपयोगी होंगे, आज की घड़ी में समाज यानी तुम्हारे क्लासमेट, तुम्हारे आजू बाजू के तुम्हारे वर्ग मित्र, ये आपके लिए समाज है। नाउ इफ यू आर यूजफुल टू द पीपल अराउंड यू, नॉट ओनली you make sense to your existence, but also you can take pride in your activities as well. And the slow learners, they are very comfortable in asking difficulty to fast learner. Slow learners always treat them with respect. और naturally एक कॉलेज में एक
ग्रास्पिंग पावर के हिसाब से एक हायरार्की तैयार हो जाती, जो तो है ही, हायरार्की तो रहती है कॉलेज में, लेकिन उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने में। बहुत बार होता है ना, ईर्ष्या होती है बच्चों में, मैं इसको क्यों समझाऊं, मुझे आ रहा है इसको क्यों समझाऊं। तो ये बताना बहुत जरूरी भी, भाई बाकी लोगों को आता है इसमें आपका गौरव है, आपको आता है और बाकी लोगों को नहीं आता है, तो आपके अस्तित्व का क्या फायदा, आपका होने का क्या फायदा। अगर इतनी इंडिविजुअल लाइफ जीनी है आपको, तो समाज के लिए आप तो बोझ हो, समाज के लिए आप बिल्कुल हेल्पफुल नहीं हो। एक इस प्रकार की भावना अगर हम शुरू के दौर में अगर बच्चों को इनकलकेट कराते, तो दे एंजॉय टीचिंग, दे एंजॉय लर्निंग। एक इंटेलिजेंट बच्चा सोचता है मैं अगर कॉलेज में नहीं जाऊं तो मेरे 5 फ्रेंड्स का नुकसान होने वाला है, मुझे तो जाना ही है, मुझे तो मेरा रोल निभाना है, मुझे नहीं आता है वो सीखना है, और जो आता है वो बाकी लोगों को सिखाना है। एक अलग प्रकार का माहौल होता है। मैंने ऐसे बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है। एक अच्छा कोहेसिव ग्रुप बना जाता है। बच्चे इंजीनियर होने के बाद 15-15, 20-20 साल के बाद जब आते हैं, शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते, उसके साथ आते हैं और वो याद करते, सर आपने जो ग्रुप बनाए थे बहुत मजा आता था पढ़ने में, ऐसा। अब देखिए आपके हाथ में जब मार्क्स है, तब आपके सामने बच्चे बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, आपको बहुत अच्छा कह रहे हैं, ये अलग बात है। पास आउट होने के बाद 20 साल के बाद जब आपकी उनकी जिंदगी को 1 रुपया कंट्रोल नहीं करते, तब आके जब बच्चे बताते हैं आपको कि सर वो वाला आपका स्टाइल बहुत अच्छा था, हमने बहुत एंजॉय किया, हम तो कॉलेज याद करते हैं, बाकी कॉलेज के हमारे फ्रेंड जो दूसरे दूसरे कॉलेज के फ्रेंड है, वो तो कॉलेज को बंक मारते, घर में बैठते, कैंटीन में बैठते, टपरी पे बैठते, हम तो कॉलेज का हर क्षण एंजॉय करते थे, क्योंकि हर क्षण में हमको इंटरेक्शन का मौका मिलता था, मजा आता था। तो सीखने का भी एक आनंद है, वो सीखने का आनंद लेने के लिए ग्रुप एक्टिविटी आपने क्लास में इंश्योर करनी चाहिए। चलिए बहुत अदर इश्यूज भी देखने में से, तो अभी पहले स्लाइड में हमने क्या देखा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों का बैकग्राउंड नॉलेज देखने के बाद ही टीच करना चाहिए। वी शुड रिकैप व्हाट वी हैव टॉट इन द लास्ट पीरियड। We should differentiate between the slow learner and fast learner as well as average learners. We should provide them some agenda which is called as tutorial, either on the topic which we already taught or on the topics which we are likely to teach next week. And we ask them to work on that, knowing full well that all of them will not be able to work on it. But we are there to support them. But give them an agenda. Don't give, hand holding, don't insist on hand holding. अगर स्पून फीड करते रहोगे तो वो जिंदगी भर स्पून फीडिंग करेंगे। उनको कहो कि मैं हूं यहां, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे जगह आपको पढ़ना है, आपको जो नहीं आएगा उसके लिए मैं हूं, लेकिन आपको जो आता है वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आपको स्पून फीडिंग नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स इसके लिए आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्रिंसिपल है, इनसे आपकी स्टाइल का अप्रूवल लीजिए। ये तो बहुत बार ऐसी भी कंप्लेंट होती है कि ये टीचर तो पढ़ाती नहीं है, हमको ही बोलते पढ़ने के लिए। ये रॉन्ग ब्रीफिंग ना हो, इसलिए ये कंसेप्ट का टीचर्स के ग्रुप में, आपके फैकल्टी मीटिंग में डिस्कशन होना चाहिए कि भाई ये भी एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है, हम करके देखें। इसमें हम टाइम पास नहीं कर रहे, हमारी जिम्मेदारी बच्चों पे नहीं डाल रहे, हमारा अस्तित्व वहां जो है क्लासरूम में वो बहुत मीनिंगफुल कर रहा है, और जहां बच्चों को जरूरत है उतनी चीज हम अच्छी तरह से पढ़ा रहे, और जो बच्चों को घर में आराम से आता है वही चीज उनको क्लास में दोहराएंगे तो दे विल लूज द इंटरेस्ट इन द क्लास। वो कहते हैं ये तो मैं घर में आराम से मुझे समझ रहा है, इसके लिए क्यों आऊं मैं क्लास में। एंड देयरफॉर दे स्टार्ट बंकिंग। मेक द क्लास इंटरेस्टिंग, make the class group activity, let the vibrance in the class be noticed by everybody। जब वाइब्रेंस होता है ना, उसकी एक एनर्जी होती है, उत्साह होता है, और सबको बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मल घर में तो हम रोज खाना खाते हैं, रात को डिनर करते हैं रोज, लेकिन हम जब पार्टी में जाते हैं तो हम ही अपने हाथों से खाना खाते हैं, अपने मुंह से खाना खाते। तो पार्टी और रोज शाम का घर का डिनर, फर्क क्या होता है? पार्टी में वी शेयर सो मेनी थिंग्स अलोंग विथ अदर्स। तो एजुकेशन में सेल्फ स्टडी तो घर में हर बच्चा करता है, ग्रुप स्टडी का आनंद अगर हमने कॉलेज में उनको दिया तो उनको पार्टी का मजा कॉलेज में आ सकता है। फ्रेंड्स, वी हैव सीन व्हाट आर द डिफिकल्टीज in a teaching learning process. Now we'll go to the next slide. What problems students face related to the co-curricular and extracurricular activities? बहुत बार क्या होता है, overlap of the schedule with the curricular activities. That means
स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट है, या मान लो को करिकुलर एक्टिविटीज में हम कहते हैं कि कोई साइंस एग्जीबिशन में पार्ट लेना है बच्चों को, या टेक्निकल क्विज में पार्ट लेना है, या उनको कोई रोबो रेस करनी है, मतलब एग्जैक्ट सिलेबस के अंदर नहीं, लेकिन ये खेलकूद वाली भी चीज नहीं है, इसको कहते हैं को करिकुलर, करिकुलम के साथ साथ होने वाली चीजें। इसमें ऐसे कंपटीशन हो सकती है, पेपर राइटिंग हो सकता है, रिसर्च पेपर राइटिंग हो सकता है, ये सारी चीजें बच्चों को आना चाहिए। ये को करिकुलर एक्टिविटी के लिए स्टूडेंट्स शुड ट्राई टू पार्टिसिपेट। इसमें भी ग्रुप का बहुत मोल होता है, ग्रुप के साथ उनको अगर एक्टिविटी करने के लिए बोलो तो बहुत अच्छा लगता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आता है, स्पोर्ट्स आते हैं सारे, म्यूजिक आता है, डांस आता है, कल्चरल एक्टिविटीज पूरी आती है, एनएसएस आता है, एनसीसी आता है। ये सारी को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत बार क्या होता है, कॉलेज के टाइम से उसका होता है ओवरलैप। अब बहुत सारे टीचर है, उनको क्या लगता है कि मेरा क्लास बंक करके खेलने गया, बास्केटबॉल की टूर्नामेंट खेलने गया, वॉलीबॉल खेलने गया, डांस के लिए गया, तो ये मेरा अपमान है, मेरा इंसल्ट है, मेरे पीरियड को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है और खेलकूद को इंपॉर्टेंस दे रहा है। टीचर की इस प्रकार की सोच सही नहीं है। अभी एनईपी क्या कह रहा है, एनईपी कह रहा है एजुकेशन शुड इंडल्ज इनटू होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई के अलावा को करिकुलर भी अच्छा होना चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर भी अच्छा होना चाहिए, बच्चा एकदम इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, ना कि केवल बुक का कीड़ा होना चाहिए। एंड देयरफॉर हम लोग अगर हमारा पीरियड बंक करके ऑफ करके अगर वो स्पोर्ट्स में जा रहा है तो उसको डिस्करेज ना करो, उसको एनकरेज करो, कहो कि भाई एकेडमिक्स तुम्हारा जो भी छूट जाएगा या तुमको नहीं समझेगा, मुझे मिलो बाद में आके, मैं समझा दूंगा फ्री टाइम में, लेकिन आप स्पोर्ट्स में जरूर पार्टिसिपेट करो। आप तो कॉलेज के टीम में हो, बढ़िया स्पोर्ट्स खेलते हो, तो बाकी लोगों के हिसाब से तुम्हारा स्पोर्ट्स में योगदान अच्छा है, जारी रखो। बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। ये ओवरलैप जो होता है ना, तब बच्चे बहुत डरते हैं, मैं टीचर से कैसे बात करूं, टीचर से बात करूं, टीचर नाराज तो नहीं हो जाएंगे, भाई मेरा पीरियड बंक करके स्पोर्ट्स को जा रहा, यानी स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और मेरा इंपॉर्टेंस कम है। तो ये बहुत बार हम लोग एक थोड़ा विशाल हृदय करके बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हम तो उनको स्पोर्ट्स सिखाते नहीं है, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में खेल रहे वहां जाके हम खड़े नहीं होते, आई एम गोइंग टू कम टू दैट लैटर। हम उनको एनकरेज तो करते ही नहीं है, तो डिस्करेज क्यों करें, डिस्करेज तो कम से कम ना करें, उनको हम सपोर्ट करें कि भाई आज क्लास में मैं जो पढ़ाऊंगा तुम्हारा मिस होने वाला है, लेकिन तुम घर में बैठ नहीं रहे हो, चकल्लस नहीं कर रहे हो स्टूडेंट के साथ, इधर उधर चाय टपरी पे भटक नहीं रहे हो, तुम अच्छा काम कर रहे हो, कॉलेज को स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो, कॉलेज को कल्चरल एक्टिविटी में रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू आर डूइंग गुड वर्क, दिस इज द पार्ट ऑफ योर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो चलो करो तुम, तो इस यहाँ का जो भी कम ज्यादा रहेगा मैं आपको एडजस्ट कर दूंगा, आपको फिर से सिखा दूंगा। गिव ड्यू रिकॉग्निशन एंड क्रेडिट इज मस्ट। स्पोर्ट्स के मार्क्स भी होते हैं, अभी नागपुर यूनिवर्सिटी में भी स्पोर्ट्स के मार्क्स आए हैं, काफी यूनिवर्सिटीज में भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स रखे। बट अपार्ट फ्रॉम मार्क्स, स्टूडेंट वांट एन एनकरेजिंग वर्ड फ्रॉम अ टीचर। When teacher pats him, he feels too much elevated. Of course, marks are required, but beyond the marks, I'm saying, if teacher can take interest into what he's contributing, what he's participating, student get connected with the teacher, and student remember the teacher many years beyond passing his graduation. I'm not saying that we should contribute only that student should remember us, but remembering is a symbol that teacher was connected during the growth of the student. कॉलेज में जो स्टूडेंट की ग्रोथ हो रही है, चलिए आप बहुत अच्छे मैसेजेस लिख रहे हैं, मुझे एनकरेज हो रहा है, some people are saying correct sir, naturally, okay, Dr. Aboli said yes sir. So typically when you go for it, it becomes a polylogue, in the sense I am giving a lecture and you are also commenting, so that means a bilateral communication is going on, so it's a dialogue, and this is very much important. Encouragement from the teacher regarding co-curricular, how it can happen. Sometime you go there on their ground, their hockey ground, their football ground, and witness a match. वो जीत गए तो उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करो, हार गए तो उनको हौसला अफजाई करो, चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम यू कैन गो हेड, उनके सुख दुख में आप शरीक हो जाओ,
तो लगता है बच्चों को, अरे मेरे मैथमेटिक्स के टीचर, मेरे फिजिक्स के टीचर मेरे वॉलीबॉल मैच में आए थे। दे गेट कनेक्टेड, दे गेट एब्सोल्युटली कनेक्टेड विथ यू, एंड इफ दे आर कनेक्टेड, कॉलेज में का डिसिप्लिन नाम का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। डिसिप्लिन का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, बच्चे अगर आपसे कनेक्टेड है तो डेफिनेटली दे आर विथ यू। अब होता क्या है, काफी जगह, मेरा खुद का अनुभव बताता हूं मैं, वीआरसी में से मतलब 1983 में मैंने बीई मैकेनिकल किया, तो 4 साल के दरमियान मैंने वीएनआईटी को 6 गेम में रिप्रेजेंट किया। मैं वीएनआईटी के टीम में 6 गेम में था। अब बताइए, मुझे वॉलीबॉल की टीम में अगर आना है वीएनआईटी के, विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, तो 3000 बच्चों में से पहले 6 में आना है, पहले 8 में आना है, पहले 10 में आना है। अब बताइए 3000 बच्चों में से पहले 10 में आना है तो जबरदस्त प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब होता क्या है, 3000 में से सारे बच्चे तो खेलते नहीं है। मान लो 300 बच्चों ने उनके जूनियर कॉलेज में, 11th-12th में जूनियर कॉलेज या उनके स्कूल को उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है वॉलीबॉल में। ऐसे खिलाड़ी लोग जो है 300, उसमें से आपको टॉप 10 में आना है, टॉप 6 में आना है, टॉप 8 में आना है, तो नेचुरली बहुत मेहनत करनी पड़ती। ऐसे मैंने वीएनआईटी को रिप्रेजेंट किया था 3000 बच्चों में से। एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, हैंडबॉल, वॉलीबॉल और चेस। चेस तो मैं यूनिवर्सिटी चैंपियन टीम का मेंबर था। हमारी कॉलेज की टीम नागपुर यूनिवर्सिटी में चैंपियन थी। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 8 में, पहले 10 में, पहले 6 में मैं वीएनआईटी के 3000 बच्चों में नहीं था, मैं नागपुर यूनिवर्सिटी के 7 लाख बच्चों में पहले 10 बच्चों में था चेस में। तब नागपुर यूनिवर्सिटी में अमरावती यूनिवर्सिटी भी थी और गोंडवाना यूनिवर्सिटी भी थी, पूरे विदर्भ का नागपुर यूनिवर्सिटी थी। अब इतना मैं करने के बाद में नागपुर यूनिवर्सिटी के, और इसके कारण मुझे बेस्ट स्पोर्ट्समैन अवार्ड मिला था वीएनआईटी का। अभी भी मेरा नाम वीएनआईटी में लगा हुआ है, पर्सन रिप्रेजेंटिंग 6 गेम। लेकिन इतना करने के बाद में होता क्या है, 2 सेशनल एग्जाम होती थी हमारी, 15-15 मार्क की 2 सेशनल एग्जाम, और फाइनल एग्जाम 70 मार्क की। तो एक सेशनल एग्जाम मैंने दी, मुझे 15 में से 14 मार्क मिले। दूसरी सेशनल के समय यूनिवर्सिटी के चेस के ट्रायल्स आए। चेस के ट्रायल आए तो पता है चेस का गेम होता है 4 घंटे का गेम है। अगर गेम में निर्णय नहीं लगा तो 2 घंटे क्लॉक लगा के, व्हाइट ब्लैक क्लॉक लगा के होता है, उसके बाद एडज्यूरिफिकेशन। तो एक राउंड 6 घंटे का होता है। ऐसे 9 राउंड की एक टूर्नामेंट होती है। अगर टूर्नामेंट 9 राउंड की खेलनी तो कहीं ना कहीं तो ओवरलैप होगा ना। तो कॉलेज टाइम में यूनिवर्सिटी ट्रायल्स आए और हम वो सेशनल दे नहीं पाए। मेरे साथ और भी थे 2 लोग चेस के और 2 लोग बैडमिंटन के थे, जो अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी चैंपियन टीम में थे। लेकिन हम सेशनल दे नहीं पाए। हम तो डरते थे टीचर से। हमारे स्पोर्ट्स टीचर को हमने बता दिया कि सर उनको बता दो कि हम सेशनल इसलिए नहीं दिए क्योंकि यूनिवर्सिटी ट्रायल खेलने गए थे। अब वहां जो अब्सेंट लोग हैं उनके लिए वीएनआईटी में प्रोविजन थी अब्सेंटी वाइवा। इसका मतलब अब्सेंट जो बच्चे हैं उनके टीचर वाइवा लेते थे और वाइवा के बेसिस पे उनको मार देते थे। उनकी री एग्जाम फिर से रिटर्न नहीं होती थी। तो बैठे हम वाइवा को और टीचर ने पहला ही प्रश्न किया, अरे वीएनआईटी में इतनी कष्ट के साथ एडमिशन मिलती है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ाई के बाद आपको वीएनआईटी में एडमिशन मिली है, आप लकी हो, आपने बहुत मेहनत करके वीएनआईटी में आए, तो एडमिशन वीएनआईटी में क्यों लिया आपने? खेलकूद करने के लिए ली क्या पढ़ाई करने के लिए? हम तो चुप ही हो गए। उन्होंने कहा कि ये खेलकूद करना जैसे आउट ऑफ सिलेबस है पूरा। और वाइवा उसी में हमको 15 में से 4 मार्क दे दिए सभी को। 4-5 लोग जो हम अलग अलग गेम्स में यूनिवर्सिटी ट्रायल को गए थे, सबको एक ही मार्क, 4 मार्क सबको 15 में से। मतलब टीचर गुस्सा कर गए हम पे कि तुम यहाँ पढ़ाई करने हैं क्या खेलकूद करने हैं? हमको लगा मतलब हमने बहुत गुनाह कर लिया खेलकूद किए तो। हालांकि हम अच्छे मेरिट में आते थे। मैं एक्चुअली बीएनआईटी में मेरिट हूँ। पहले 10 में मेरा नंबर था बी में, और एमटेक में मैं फर्स्ट मेरिट बीएनआईटी में आया हूँ। गोल्ड मेडल है मेरे पास बीएनआईटी। तो बेसिकली होता क्या है कि स्टूडेंट जो है वो एक अभिमान के साथ टीचर को कहना चाहता है कि मैंने स्पोर्ट्स के लिए गया था, मेरा चयन हुआ था, यूनिवर्सिटी ट्रायल्स के लिए खेलने गया था, मैं ऐसा वैसा सब। और टीचर कह रहे तुम खेलने आए क्या पढ़ने आए? इतना डिस्क्रिमिनेट होने के बाद ऐसा लगता है ना कॉलेज के प्रति तुम्हारा लगाव कम हो जाता है। कम से कम वो टीचर के प्रति लगाव कम हो जाता है। हम तो ये नहीं कह रहे कि उस क्लासेस जो हमारे बंक हुए
उसमें जो अब हमने मिस की पढ़ाई वो हम फिर से हम आपको पढ़ना चाहते हैं, आप हमको फिर से पढ़ाओ, तो हम टीचर को तो तकलीफ में बिल्कुल ही नहीं डालते थे। हम कहते थे हमारा अटेंडेंस जो है उसको एडजस्ट करो, लेकिन वो भी करने को तैयार नहीं। इतना भी पढ़ाई का एक्सेंट्रिक अप्रोच क्यों होना चाहिए? लेकिन कुछ टीचर होते हैं वैसे, जिन्होंने खुद के कॉलेज लाइफ में अगर खेल कूद में कोई इंटरेस्ट ना लिया हो ना, तो टीचर बनने के बाद उनको लगता है खेल कूद सब ये बकवास है, एक्स्ट्रा करिकुलर सब बकवास है, बाहर जाओ। अब ड्रामा में भी हमने पार्टिसिपेट किया था, यूनिवर्सिटी में तीसरा प्राइज हमें मिला था। अब देखिए कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को तीसरा प्राइज मिलना ये छोटी बड़ी बात नहीं है, पहला नहीं मिला, दूसरा नहीं मिला, लेकिन कला के क्षेत्र में तीसरा प्राइज मिलना ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कल्चरल में क्या होता था, हम ड्रामा की प्रैक्टिस इवनिंग को होती थी कॉलेज खत्म होने के बाद, तो कॉलेज के एनकरेजमेंट डिस्करेजमेंट का कभी हमें सवाल ही नहीं पैदा हुआ। फिर भी हमें एक दो टीचर जो वीएनआईटी के आज भी याद रखते हैं हम लोग, कि जो हमारी कल्चरल की प्रैक्टिस को आते थे हौसला अफजाई करने के लिए, सिर्फ आते थे, बैठते थे, 15-20 मिनट देखते थे प्रैक्टिस चालू है कल्चरल की और चले जाते थे। लेकिन हमें आज भी वो टीचर याद है कि चलो भाई हमारे सुख दुख में, हमारे ग्रोथ में, हमारे एक एक चीज में कम से कम साक्षी करके, विटनेस करके, they were interested in it, and therefore encouragement from the teacher is a significant thing for the holistic development of the student. Then we should teach them the priority and the time management. बहुत बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको समझता ही नहीं, वो खेले तो खेल ही खेलते रहते, दिन भर खेलते रहते, वो ना उनका कॉलेज के टीम में नंबर लगता ना यूनिवर्सिटी के टीम में नंबर लगता, लेकिन खेल में मजा आता है तो दिन भर खेल करते। तो अल्टीमेटली दिस इज एक्सेंट्रिक प्रायोरिटी। एज ए स्टूडेंट उन्होंने पढ़ाई भी करना है और पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद करना है, पढ़ाई के जगह खेलकूद नहीं करना है। दे आर नॉट सपोज टू गो फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इन ल्यू ऑफ स्टडीज, along with the studies they are supposed to do it. ये उनको समझाना जरूरी। जब पता चला कि आप 6 गेम में मैंने वीएनआईटी को रिप्रेजेंट किया, तो आप बताइए मेरे को कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी होंगी सारे गेम्स की, सारे मतलब अलग अलग क्षेत्र में। कोई विद्यार्थी कह रहा है एक ही गेम खेल रहा है, हैंडबॉल ही खेल रहा है, तो हैंडबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है, सवेरे कर रहा है 1 घंटा 2 घंटा, शाम को 1 घंटा 2 घंटा। दूसरा कोई खिलाड़ी है वो चेस की प्रैक्टिस कर रहा है। अब मुझे 6 गेम में अगर रिप्रेजेंट करना है तो सारे गेम की प्रैक्टिस करनी, कब करेंगे, पढ़ाई कब करेंगे? ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत चक्कर होता है। तो मैंने एक पढ़ाई का तरीका ऐसा किया, जरूरी नहीं कि सभी बच्चों को वो हम कर सकेंगे। अर्ली मॉर्निंग 5 to 7 आई यूज्ड टू स्टडी, और सवेरे के 2 घंटे पढ़ाई पर्याप्त है पूरे इंजीनियरिंग एजुकेशन को। एवरी डे 2 hours एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई। कॉलेज में जो पढ़ाते थे ना वो पूरा ध्यान दे के मैं पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता था मेरे को कॉलेज के अलावा समय नहीं है पढ़ाई के लिए, मेरे पास है ही नहीं समय, खेलकूद करना है ना, फिर समय नहीं है, फिर क्लास में कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, और अर्ली मॉर्निंग 2 घंटा मन लगा के पढ़ना है। उसके बाद बाकी पूरा बचा टाइम खेलकूद, सैटरडे संडे खेलकूद, सब पूरा मतलब खेलकूद कल्चरल ये वो सब। तो टिपिकली ये कब कर सकते हैं हम, जब हम अच्छी तरह से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। उम्र होती है बच्चों की, नहीं समझता इंपॉर्टेंस टाइम मैनेजमेंट का, किसी को इंपॉर्टेंस समझा तो टेक्निक नहीं मालूम। ये टीचर का काम है। ये ना रेस्ट्रिक्ट करो अपने आप को कि मैं तो फिजिक्स का टीचर हूं, मैं तो इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, मैं तो हिस्ट्री का टीचर हूं। अरे पहले तो आप टीचर हो ना, तो स्टूडेंट को बताओ सेल्फ स्टडी कैसे करना, स्टूडेंट को बताओ प्रायोरिटी कैसे रखना, स्टूडेंट को बताओ टाइम मैनेजमेंट कैसे करना। ये मन में मत भाव लो तो ये सब्जेक्ट का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप टीचर हो, आप इंस्पिरेशन के सोर्स हो, आप टीचर हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसी की जाती ये बच्चों को सिखाने के लिए आपका वहां एग्जिस्टेंस है। डेफिनेटली उसको ये बताना बहुत जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, मैं अर्ली मॉर्निंग जो पढ़ता था ना, एक बार जो मैंने पढ़ा, मान लो 3 जुलाई को मैंने अगर कोई चीज पढ़ी है तो दिसंबर के सेमेस्टर एग्जाम में मुझे वो याद आती थी। क्योंकि पढ़ना तो बार बार नहीं पढ़ना, रिवीजन के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो हम क्या करते, जनरली स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट पहले 2-3 महीने में पढ़ाई ऐसी करते, हाँ कर लेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, कर लेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, फिर बाद में रिवीजन करेंगे, बाद में रिवीजन करेंगे। ये अप्रोच ही गलत है। पहली ही विजन ऐसी करो कि रिवीजन की जरूरत ही ना हो, क्योंकि बार बार रिवीजन करने के लिए उतना समय किसके पास है, समय नहीं है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता बहुत जरूरी है। 2 things are required for the education. One is the strength of conviction
एंड अदर इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। एक दृढ़ निश्चय चाहिए एजुकेशन में, और दूसरी चाहिए एकाग्रता। ये दो चीज अगर टीचर सिखा सके उसको, तो भले जो टीचर को आपको सब्जेक्ट अलॉट हुआ वो आपने थोड़ा बहुत कम सिखाया तो भी चलेगा, लेकिन बच्चों को दृढ़ निश्चय सिखाना जरूरी है, बच्चों को एकाग्रता सिखाना जरूरी है। ये दो चीज सिखाई तो बच्चे बाकी जो सब्जेक्ट्स है ना वो अपने आप सीख लेते हैं। देखिए मेरा अनुभव है, आप वो सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी के टेक्निक से 70-80%, 90% तक वो बिना आपके सपोर्ट के सारा पढ़ सकते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी कैसे करना आपको उनको सिखाना पड़ेगा, ग्रुप स्टडी कैसे करना आपको उनको सिखाना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय कैसे करना उनको सिखाना पड़ेगा, एकाग्रता कैसी आनी उनको सिखाना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट के हर चीज की प्रायोरिटी क्या देना, कब, जैसे वर्क वाइल वर्क एंड प्ले वाइल प्ले जो कहते हैं ना, एग्जाम के समय आई तो खेलकूद छोड़ो, परीक्षा में पढ़ाई में करो, बाकी साल भर खेलकूद करो। तो ये प्रायोरिटीज, ये नियोजन उनको आना चाहिए। देन टाइम मैनेजमेंट, अ टीचर शुड टीच देम। देयर शुड बी अ प्रोफेशनल डेली रूटीन। मैं तो मेरे स्टूडेंट को हरदम बताता हूं कि भाई आप इंजीनियर करके अब जब इंडस्ट्री में जाओगे तो 10-12 घंटे का तो जॉब हर जगह है, 10 घंटा 11 घंटा जॉब तो मिनिमम है। अभी 7-8 घंटे वाले जॉब तो रहे नहीं। प्रोफेशनली अगर सक्सेसफुल होना है तो बी रेडी फॉर 10 आवर वर्किंग। नाइस। अब अपना घर और काम करने की जगह यहाँ जाने के लिए 1 घंटा लगता है ऑन एन एवरेज, आने के लिए 1 घंटा लगता है, तो 10 घंटे तो ऑफिस काम हो गया आपका, आना जाना मिलके 12 घंटे हो गए। अब होता क्या, 8 घंटे तो स्लीप करोगे कि नहीं करोगे, तो 12 और 8 20 हो गए। तो 24 घंटा दिन की बात हम कर रहे हैं, तो आपके हाथ में तो 4 ही घंटा है, क्योंकि 8 घंटा नींद में गया, 10 घंटा जॉब में गया, 2 घंटा आने जाने में गया। ये 4 घंटा आपके हाथ में है, उसमें से 2 घंटा आपके रोजमर्रा काम में जाते हैं, जैसे सवेरे खाना खाना है, नाश्ता करना है, शाम को खाना खाना है, ब्रश करना है, स्नान करना है, सॉक्स पहनना है, शूज पहनना है, घर में आने के बाद सॉक्स निकालना है, शूज निकालना है, कपड़े बदलना है। हमको पता ही नहीं चलता समय कितना जाता है। तो हार्डली 24 घंटे के दिन में आपके पास 2 घंटा रहने वाला है। अगर आप 10 घंटा जॉब और 2 घंटा आना जाना, 12 घंटे की मेहनत के बाद 2 घंटे आपके पास में है, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। तो प्रोफेशनल डेली रूटीन में उनको क्या बताना है, उनको बताना कि कंट्रोल योर लाइफ। दिन भर में क्या किया, रात को 5 पंक्ति 5 लाइंस की डायरी लिखना जरूरी है। हाउ वाज माय डे, कैसे क्या दिन आज का। चलो ठीक है, मैंने ये सोचा था लेकिन हुआ नहीं, ये सोचा था लेकिन मेरा दोस्त था क्या, हुआ नहीं, नो इशू। कल I will take care, tomorrow I'll take care, and I will see to it that whatever I have decided today and I was not able to do, tomorrow I'll take care, and whatever I decide today for tomorrow, I will see to it that tomorrow it is executed. कल रात को सोते समय फिर से एक बार लेखा जोखा लो, काउंटिंग लो इसका सभी का, कि क्या मैं कर पाया जो मैंने तय किया। अगर आपकी जिंदगी आप खुद कंट्रोल नहीं करोगे तो कौन करेगा दूसरा कंट्रोल। So do not let the reins of your life in the hands of others or environment as such. Do not let your life be governed by your dictates of your friends, relatives, neighbors and other people. Keep control of yourself. This is professional daily routine. हर 1 घंटा सवेरे उठने के बाद रात को सोने तक मैं क्या क्या कर रहूंगा, ये प्लान करो, एग्जीक्यूट करो, और इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अरे आई डिसाइडेड समथिंग एंड आई एम एबल टू डू इट। व्यक्ति को कॉन्फिडेंस आता है अलग लेवल का। काउंसलिंग फॉर करियर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। भी पढ़ाई करनी है, 3 साल का ग्रेजुएशन करना है, 4 साल का ग्रेजुएशन करना है, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेना है, फर्स्ट क्लास लेना है, डिस्टिंक्शन लेना है। केवल इतना ऑब्जेक्टिव पर्याप्त नहीं है। What you want to do after graduation, they should think, imagine, plan, and accordingly something they can initiate during graduation. Because graduation में आपके साथ ग्रुप है, ग्रुप के साथ जो भी करना है ड्यूरिंग ग्रेजुएशन करो। उसके बाद जो खुद प्रिपेयर करोगे ना आप, तो आइसोलेशन में सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ग्रुप स्टडी का एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ग्रुप बिना सैलरी का, बिना खर्चे का अपने आप कॉलेज में आ रहा है और आपको ग्रुप की सुविधा प्राप्त हो रही है। नहीं तो 4 लोगों को खड़े करो आप अपने साथ आफ्टर जॉब ज्वाइन करने के बाद, तो किसी के पास फुर्सत नहीं है आपके साथ बैठने के लिए। तो टिपिकली दिस इज एन एडवांटेज, कॉलेज इज एन एडवांटेज ऑफ अ ग्रुप। मैं तो बच्चों को अपील करता हूँ, अरे बंक क्या बैठ रहे हो, जिंदगी भर तुमको अकेले रहना है घर में, तो
आज जब ग्रुप में रहने का मौका मिल रहा है, बाकी सारे लोग आ रहे हैं, अपने आप आ रहे, खुद के कॉज से आ रहे हैं, और आपको ग्रुप का एडवांटेज मिल रहा है, पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करो। पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करना तो आपको ऑडियंस तो लगेगा ना, यहाँ बना बनाया ऑडियंस सामने मिल रहा है, तो अपनी बात उनको इन्फ्लुएंशियली कैसे कह सकते हो, कोशिश करो। दिस इज एन लेबोरेटरी, कॉलेज इज अ लेबोरेटरी ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल। एफर्ट्स फॉर एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट शुड बी डन ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। इसमें क्या लगता है, एप्टीट्यूड एग्जाम लगती है, उसकी तैयारी करो, जनरल नॉलेज बढ़ाना है, जनरल अवेयरनेस बढ़ाना है, क्या क्या करना है ये सारी तैयार करो। फिजिकल हेल्थ भी अच्छी मेंटेन करनी है, एक्सरसाइज डेली करना है। ये सारी चीजें नहीं करोगे तो जब ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा काम का प्रोफेशनल लाइफ में, तो नेचुरली यू विल फील दैट यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द वर्क प्रेशर इन द प्रोफेशनल लाइफ। इनकलकेटिंग परसिवरेंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस। परसिवरेंस इसको कहते हैं जिद, चिकाटी। एक काम जो करना है ना, हाथ में लिया हुआ काम छोड़ना नहीं, चाहे फिर सफल हो या असफल हो, बार बार गिरते जाएंगे, फिर से आप उठते जाएंगे। वो कविता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसमें ना एक चींटी चढ़ रही है दीवार के ऊपर और बार बार नीचे गिरती, फिर से जीरो फिर से सेट हो जाता उसका, फिर से शुरू हो जाती। इसका मतलब जीतने तक कोशिश छोड़नी नहीं है। ये सिखाना है ग्रेजुएशन में। ये नहीं कहना कि हम तो बीकॉम के टीचर, हम तो बीए के टीचर, हम तो बीएससी के टीचर, हम तो बीई के टीचर। स्किप इट। टीचर होना तो स्टूडेंट के ग्रेजुएशन के दरमियान उनमें जो जो गुण सद्गुण लाने की जरूरत है उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। अपने आप को इतना सीमित ना करो, मैं तो फिजिक्स का टीचर हूं, मैं तो इकोनॉमिक्स का टीचर हूं। इतना छोटा दायरा नहीं होता टीचर का। ये तो फिजिक्स इकोनॉमिक्स तो बहाना है बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का। मतलब एक समय मिलता है ना टाइम टेबल के साथ आपको बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का, ऑफिशियल टाइम, उसके अंदर जिम्मेदारी लो कि सारे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए कोई आपको एचओडीज है और प्रिंसिपल है, कोई डांटेगा नहीं, कोई आपको बोलेगा नहीं, क्योंकि आपने पहले उनसे बात करके आपका जो रवैया है बताना है। खुद काम करने की जगह बच्चों को काम करवाना ये गलत है। खुद को पूरा आता है, यू कैन टीच बेस्ट टू द स्टूडेंट, स्टिल you are inculcating self study habit in the student, group study habit in the student. This is required. Next madam, can you change the slide? Yeah, I think next slide देखो, क्वेश्चन आंसर होंगे। नेक्स्ट स्लाइड, बैक आ जाओ, बैक। हाँ, दिस इज माय लास्ट स्लाइड फ्रेंड्स। करिकुलर एक्टिविटी में हमने बच्चों को सपोर्ट किया, उनके प्रॉब्लम जान लिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी में वी अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट एंड ट्राई टू आंसर इट। नाउ एज ए टीचर वी हैव रोल इन द पर्सनल प्रॉब्लम्स एज वेल। Health management, mental health and physical fitness. Now, many teacher can take a stand that, okay, why we should bother about it? That's their problem. Students are major, now they are college going student. बड़े हो गए बच्चे, अब वो अपना अपना देखेंगे। ऐसा नहीं होता है ना। आप जहां जहां मदद कर सकते हो आप करो। टीचर का जितना इन्फ्लुएंस बच्चों पे होता है ना, उतना किसी के नहीं होता है। बहुत बार तो पेरेंट्स का भी नहीं होता है। तो टीचर को इतना अच्छा रोल मिला है, उसको एक्सप्लॉइट करो, उसको अच्छी तरह से होलिस्टिक डेवलपमेंट स्टूडेंट का बनाओ। मेंटल हेल्थ बच्चों की कम होती है, 2 सब्जेक्ट 2 मार्क्स कम मिल गए, 2 मार्क्स से मैं फेल हो गया, जाके सुसाइड कर देता है। अरे कैसे कर सकता है सुसाइड आपका स्टूडेंट? मैं आपका स्टूडेंट इसलिए बोल रहा हूं कि स्टूडेंट की मानसिक अवस्था कमजोर ना हो, ये भी टीचर की जिम्मेदारी है। तो इसके लिए आपने कुछ इनपुट दिए हैं क्या? बच्चों को बताना जरूरी है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट एंड द लास्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। ऐसे एग्जाम पे एग्जाम आने वाले हैं। एग्जाम जिंदगी भर आने वाले, ये तो हर्डल रेस है। तो आप तो एक कहते हैं ना कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या कहा है कि हार जीत समसमान है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, मतलब हार से भी मैं डरता नहीं हूं और जीत से भी मैं डरता नहीं हूं। कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं। कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? कृष्ण ने गीता में कहा है शीतोष्ण सुख दुखेशु। यानी शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि ठंडा हो या गर्म हो, अपने चित्त को स्थित रखो, स्थिर रखो। सुख हो या दुख,
अपने चित्त को विचलित ना होने दो। आपकी प्रज्ञा, आपकी प्रतिभा, आपकी बुद्धि सबको स्थिर रखो। तो जिसकी प्रज्ञा स्थित हुई एक जगह है, हार जीत से लहराती नहीं है, सुख दुख से ऊपर नीचे नहीं होती है। जिसकी प्रज्ञा, प्रतिभा, बुद्धि स्थित हो गई, तो स्थित जिसकी प्रज्ञा हुई वो बन गया स्थित प्रज्ञ। तो कृष्ण कहता है अर्जुन को कि स्थित प्रज्ञ बन, हार जीत से आप मच लो ना। कहते कि दिमाग के अंदर घुसना नहीं चाहिए सक्सेस और नाराजगी और ये डिप्रेशन नहीं आना चाहिए फेल्यूर से। तो कहते हैं कि दिमाग के अंदर घुसना नहीं चाहिए सक्सेस, और फेल्यूर के साथ निराश नहीं होना चाहिए। ये वृत्ति माँ बाप नहीं ला सकते बच्चों में, टीचर ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्लास में कंपटीशन है बच्चों की, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है। अरे सतीश, तुम राजेश जैसा क्यों नहीं सोचते हो? 2 गेम में वो हारने के बाद भी अपना हौसला बुलंद रख रहा है, चलो नेक्स्ट डे फिर से ट्राई कर रहा है, मैं तीसरा गेम होगा, मैं जीतूंगा तीसरे गेम में। मतलब 2 गेम हारने के बाद में भी मैं तीसरा जीतने की जिद रखता हूं, ये अच्छी वृत्ति है। खिलाड़ू वृत्ति होना चाहिए। अपोनेंट ने आपको हराने के बाद भी उसके प्रति गुस्सा या द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, चलो कहीं मेरी कमियां रहेगी, मैं इंप्रूव करूंगा। ये सारी खिलाड़ू वृत्ति, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट बच्चों में आना चाहिए। ये टीचर की जिम्मेदारी है। मैं टीचर को बहुत बड़े दायरे में जिम्मेदार मान रहा हूं। एक समाज परिवर्तन करने वाला टीचर होता है। एकदम से लाइट वाले गेटिंग एडजस्टिंग इन हॉस्टल लाइफ, बहुत बार हॉस्टल लाइफ का खाना नहीं आता है, वो अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, अपने काम करने पड़ते हैं, है ना। बहुत बार होम सिकनेस होता है फर्स्ट ईयर के बच्चों को पर्टिकुलरली। तो डेफिनेटली आपको ये बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट देना चाहिए, काउंसलिंग करना चाहिए। चलो ठीक है भाई, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। फर्स्ट ईयर डिग्री का हर एक व्यक्ति की जिंदगी में कभी ना कभी आया है। चलो तुम जो आज प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो कोई बहुत एकदम अलग नहीं है, चलो ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये दौर भी निकल जाएगा। गेटिंग एडिक्टेड टू बैड हैबिट्स। अभी आज के समय में बच्चे तंबाकू, सिगरेट, दारू, ड्रग्स, ये सभी चक्कर में क्विकली आ जाते हैं। कहते पढ़ाई चालू करना है तो मुहूर्त, बोले मंडे से चालू करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, नए साल से करेंगे। तंबाकू घोट के बाजू वाले ने उसको दे दिया, तुरंत खा लेता है। गलत चीजें के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, गलत चीजें तुरंत, अच्छी चीजें तो मुहूर्त देखता है। ये स्टूडेंट की साइकोलॉजी है, युवा जो है ये बहुत साइकोलॉजी उनकी। सो गेटिंग एडिक्टेड टू बैड हैबिट्स, ये बैड हैबिट कॉलेज लाइफ में एडिक्ट होते बच्चे, ये पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता। तंबाकू खाने वाला कभी बच्चा घर में तंबाकू नहीं खाता है, तो लेकिन कॉलेज में ये सारी चीजें करते हैं बच्चों के साथ, तो टीचर इज सपोज टू करेक्ट इट। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। कभी मन के हिसाब से सक्सेस नहीं मिलता है, तो कभी कॉम्पिटिटर ऊपर चले जाते हैं, उसकी नैराश्य आ जाता है। कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस प्रकार उस एज में जो अट्रैक्शन होता है, कभी लगता है यही जिंदगी, पढ़े बड़े क्या करना है। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, और डीफोकसिंग फॉर करियर गोल्स बहुत होता है। ये डीफोकसिंग क्यों होता है करियर गोल से? क्योंकि उसको लगता है करियर वरियर तो जिंदगी भर पड़ा है, ये अभी कॉलेज लाइफ तो अभी है, अभी दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, अभी है ना, अभी बाकी क्या है। और ये बार बार अपने मन को समझाने के बाद में भी वही चीज पे फिर से मन आ जाता है। कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजान राह के पीछे, अनजानी चाह के पीछे, मन दौड़ने लगता है। कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मर्यादा जो है, मन तोड़ने लगता है। अनजान राह के पीछे, अनजानी चाह के पीछे, मन दौड़ने लगता है। ये जो एडोलसेंस के प्रॉब्लम है, ये बहुत ज्यादा दिखाई देते अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में, पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर में। समझ में नहीं आता बच्चों को, तब तक उसका पूरा करियर धूमिल हो जाता है। समझ में नहीं आता तब तक वो डिरेल्ड हो जाता है। इसको होल्ड करना,
ऐसा कोई गुमसुम बैठा है लड़का, नाराज बैठा है लड़का क्लास में, उसको आइडेंटिफाई करना, क्लास के बाद अपने पास बुलाना, उसको डीपली काउंसिल करना, उसको पूछना भाई क्या रीजन है तुम्हारा, तुम तो खुश रहना चाहिए, कॉलेज लाइफ है, ये जिंदगी का ऐसा दौर है 3 साल 4 साल कि जिंदगी भर नहीं आता ऐसा दौर, ये बहुत मस्ती के दिन होने चाहिए, चलो भाई आप डोंट मिस ऑल दिस थिंग। फिर वो शेयर करता है कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, मेरे साथ वैसा प्रॉब्लम हुआ। इसमें से 50% केसेस मैंने देखी मेरे काउंसलिंग के दरमियान, वन साइडेड लव होता है, वो लड़की से प्यार कर रहे, लड़की उनकी तरफ देखे नहीं रही। अब ये प्रॉब्लम टीचर कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? अब ये तो उनका प्रॉब्लम। फिर भी स्टूडेंट नीड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ओवर इट, है ना, कि जो आप जो चाहते हो सारी चीज जिंदगी में थोड़ी मिलती है, सारी चीज थोड़ी ना मिलने वाली है जिंदगी में, है ना। वो था ना देवानंद का गाना था ना, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ये फिलॉसफी है जिंदगी की। ये फिलॉसफी अगर बच्चों को हम समझा सकते, भाई जो मिल गया वो तो मुकद्दर है, आपके नसीब में था इसलिए मिल गया, और जो खो गया उसको आप भूल जाओ। डोंट लीड योर लाइफ इन द पास्ट, सेट द जीरो एंड स्टार्ट फ्रॉम टुमारो फ्रेश। ये एक आशावादी दृष्टिकोण बच्चों को देना जरूरी है, उनका डीफोकसिंग फ्रॉम करियर गोल बचाना जरूरी है। देन मोटिवेटिंग सेल्फ एंड मोटिवेटिंग अदर्स, बच्चों को ये बताना चाहिए खुद के अंदर से मोटिवेशन कैसे निर्माण किया जाता है। बहुत बार मैंने देखा है, बहुत अच्छा लेक्चर दिया, बहुत प्रेरणा दी बच्चों की, बच्चे में एकदम हवा टाइट, चलो कल से ये करते, कल से वो करते, इतना उत्साह। 2 दिन के बाद पता चला किसी ने पिन मार दिया उनको, सारी हवा छूट गई, फिर से ढीले हो गए। तो बच्चों को बार बार हवा देना जरूरी है, क्योंकि ये नॉर्मल वृत्ति है कि 2-3 दिन के बाद मोटिवेशन फिर से डाउन हो जाता है। कुछ विरला होते हैं लड़के, सेल्फ मोटिवेटेड पीपल आर रेयर। देन वी शुड टीच देम सेल्फ मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ मैनेजमेंट? सेल्फ मैनेजमेंट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 1 इज गोल सेटिंग, क्या करना है तुमको जिंदगी में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, ये ग्रेजुएशन में क्या करना चाहते हो, इस साल क्या करना चाहते हो, इस साल जो करना चाहते हो उसमें से ये महीने में क्या करना चाहते हो, ये महीने में जो करना चाहते हो ये हफ्ते में क्या करना चाहते हो। सेट द गोल, लाइफ गोल, ग्रेजुएशन गोल, ईयर गोल, मंथ गोल, वीक गोल एंड समटाइम डे गोल। आज क्या करना चाहते हो? गोल सेटिंग अगर उनको अच्छी तरह से समझा दिया, फिर पता चला सर मैंने गोल सेट किया, मेरे को तो आईएएस ऑफिसर बनना है, अरे वाह बहुत बढ़िया, आईएएस बनना है। कैसे करोगे टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट उनको बताना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि यू हैव टू अलोकेट फॉर द थिंग्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी डन टू बिकम आईएएस। आईएएस बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? भी मेरा जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, मेरा जनरल अवेयरनेस अच्छा होना चाहिए, मेरा आईक्यू अच्छा होना चाहिए, मेरे को लॉजिकल थिंकिंग एनालिटिकल एबिलिटी आनी चाहिए, एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, मेरा इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। चलो ठीक है, 5 चीजें आपने पकड़ लिया आईएएस के लिए होनी चाहिए। चलो ये 5 चीजों में मैं 3 साल के ग्रेजुएशन में कितना समय दूंगा, बंटवारा करो हर एक का, 300 घंटे देंगे, चलो मान लो 1500 घंटे देंगे पूरा। 1500 घंटे में से मैं फर्स्ट ईयर में दूंगा 500 घंटे, चलो बढ़िया, 365 दिन है तो डेली 2 घंटा देना पड़ेगा ना। ऐसा क्रिस्टलाइज करके उसको बता दो कि चलो 2 घंटे आपको अपने करियर की तरफ देना पड़ेगा, जिसका नाम है मुझे आईएएस बनना है, यूपीएससी एग्जाम देना है। उसको बताओ टाइम कैसे एलोकेट किया जाता है, उसको बताओ कि समविचार के लोगों का ग्रुप बनाओ, जिनको जिनको यूपीएससी एग्जाम देनी है उनका ग्रुप बनाओ, उनको अच्छी तरह से टारगेट दो, और हफ्ते में एक बार टीचर ने सिर्फ उनको पोक करना है, टीचर ने कोई पढ़ाना नहीं है, उनको समय नहीं देना है, ज्यादा पोक करना है, बेटो कैसे चल रहा है, पढ़ाई कैसे चल रही है, सर पिछले हफ्ते में क्या गैदरिंग था ना, ये था ना वो था ना, पढ़ाई नहीं, अरे कोई बात नहीं, पिछले हफ्ते में गैदरिंग था, गैदरिंग हर हफ्ते में थोड़ी होता है, चलो इस हफ्ते से फिर से रिजॉल्व करो। वो उनका फिर से उनको इनिशिएटिव देके मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है। सेल्फ मैनेजमेंट में पहला मैंने कहा था गोल सेटिंग, दूसरा टाइम मैनेजमेंट, और तीसरा सेल्फ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब होता है टेक द कंट्रोल्स, टेक द रेन्स ऑफ योर लाइफ इन योर ओन हैंड। रोज रात को देखो कि मेरे गोल के प्रति मैंने जो टाइम अलोकेट किया था उसमें से एक्चुअल एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कल का शेड्यूल रिवाइज करो, परसों का शेड्यूल रिवाइज करो, सैटरडे संडे फिर इधर उधर चिट चैट नहीं करो, चकल्लस ना करो, जितना बैकलॉग हफ्ते भर का सैटरडे संडे निकाल लो। Likewise, you keep yourself on the track. Ensure that you are on the track. Friends, lot much can be said. I am having around 41 years of teaching experience. तो बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे इवेंट है, बहुत सारे अनुभव है, और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ बहुत अच्छे अनुभव। कुठे गेली पब्लिक? यस, आम्ही सर बहुत अच्छे अनुभव मुझे है, मैं आपके साथ शेयर
करने की मेरी इच्छा है। आखिरी के 15 मिनट टाइम में डालेगा? क्वेश्चन आंसर के लिए रख रहा हूं। तो अभी मैंने 3 स्लाइड में बताया आपको करिकुलर के साथ बच्चों को क्या सपोर्ट लगता है, को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर के साथ सपोर्ट क्या लगता है, और पर्सनल जिंदगी में क्या सपोर्ट लगता है। So typically, if as a teacher we are able to address their problems in curricular, extracurricular, and personal level, perhaps that is the role of the teacher. Apart from teaching and taking the syllabus, what is allotted to us? ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि जो सब्जेक्ट दिया है टीचर ने, प्रिंसिपल ने, एचओडी ने, वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाना और अपने यही बाकी चालू रखना, ऐसा नहीं। दिस ऑल थिंग, जैसे बच्चों को हम कह रहे हैं सारा साथ साथ करना है, वैसे एज ए टीचर ऑल्सो हमको सारा साथ साथ करना है। एकेडमिक सिलेबस भी खत्म करना है और ये सारी चीज का मॉनिटरिंग करना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का हो, ये जिम्मेदारी लेके काम करना है। सो आई एम थैंकफुल फॉर योर keen learning and attending my presentation. I invite now the polylogue, the interaction. Yeah, I'm encouraged by your comments. Sir, good morning. This Good is morning. Dr. Pallavi from LET College, sir. Yeah, welcome. सर आपने जो भी कहा इट वाज डेफिनेटली ट्रू कि हमको हमारे बच्चों के साथ फ्रेंडली Right, रहना right. है, उनको एनकरेज करना है। लेकिन Right. सर आज की तारीख मैंने पोस्ट कोविड ये देखा जा रहा है कि बच्चे कॉलेज में ही नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये काफी जगह पे ये हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो उनको कॉलेज तक कैसे खींचे जाए? एक बार बच्चे आ जाए हमारी कस्टडी में तो हम लोग आगे का सब कर लें बिल्कुल सर। बिल्कुल। अभी मेरा एक सवाल ऐसा है, कॉलेज में नहीं आ रहे तो दुनिया से गायब हो गए क्या? कहीं ना कहीं तो जा रहे, दिन का पूरा समय कहीं ना कहीं बिता रहे, फ्रेंड्स के साथ बिता रहे, क्लब में बिता रहे, स्पोर्ट्स में बिता रहे, कहीं इधर उधर बता। सवाल क्या है, उनको क्या अट्रैक्ट कर रहा है, कॉलेज से ज्यादा अट्रैक्ट क्या कर रहा है? क्यों ना बच्चों को हम रीओरिएंट कराए कि चलो कॉलेज में 4-5 घंटे आप अगर आते हो तो इस प्रकार का ग्रुप आपको बाहर नहीं मिलेगा। ये ग्रुप में आपकी पढ़ाई होगी, आपका करियर होगा, सब कुछ होगा। घर में बैठ के केवल करियर नहीं होगा। जो एनरिचमेंट कॉलेज में है वो केवल घर में नहीं होता है। अदरवाइज इतने सालों से स्कूल कॉलेज हुआ ही नहीं करते, मतलब ये तो बंद किए होते अभी तक अगर ये यूजलेस होते। लेकिन ये यूजफुल है, ये बच्चों को एहसास नहीं होता है। पेरेंट भी क्या देखते हैं, अटेंडेंस का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए बेटा, तेरे को डिटेन नहीं करना चाहिए कॉलेज ने। मतलब पेरेंट्स ऑल्सो इसको कंस्टेंट करके देखते हैं, अटेंडेंस को ऑब्जेक्टिव करके देखते नहीं है कि कॉलेज में अटेंड करो नहीं तो तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि वहां एनरिचमेंट जो होगा वो तुम मिस करोगे। तो फुल टाइम एजुकेशन को ओपन यूनिवर्सिटी जैसा लड़के ट्रीट करते हैं कि केवल परीक्षा देना। इज इट ए चैनल फॉर गिविंग एग्जामिनेशन? इट इज ए बेसिकली द प्लेस वेयर यू आर एनरिच। एग्जाम लो या ना लो, एनरिचमेंट जरूरी है। तो एनरिचमेंट में बच्चों का अगर इंटरेस्ट नहीं रहा ना तो दे आर मिसिंग अ बिग थिंग एंड दे विल लूज मेनी थिंग इन लाइफ। ये उनको एम्फेसाइज करना जरूरी है। आप कहेंगे कि एम्फेसाइज करने के लिए बच्चे आए तो कॉलेज में, अब ये देख कहीं ना कहीं तो ब्रेक करना पड़ेगा इसको। मान लो आते कॉलेज में पूरे साल भर बच्चे आते नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभार आते हैं, एडमिशन के दिन आते, कुछ तो एक दिन उनका प्रोग्राम रखो, रंगारंग प्रोग्राम रखो, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रखो, किस चीज की उनको चाहते वो रखो। और उसमें दिन भर के 4 घंटे 5 घंटे के माहौल प्रोग्राम में 1-आधा घंटा उनको डोज दो जो उनको करियर का उनके काम का है। दिन भर ना दो, ना तो आज आएंगे बच्चे और अगले 2 महीने आएंगे नहीं, ऐसा भी ना करो। उनको जो डाइजेस्ट हो रहा, देखिए अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पता नहीं मुझे आप सब लोग यू विल बी विथ मी और अदरवाइज। पेशेंट को देखिए, अत्यवस्थ पेशेंट जो होता है हॉस्पिटल में ना, उसको सब तरफ से इंजेक्शन देने पड़ते हैं। उसके पूरे जो है ना ये बाहु जो उसके पूरे दंड जो है उसको इंजेक्शन देके बिल्कुल छलनी हो जाते हैं। फिर उसके थाइस पे देते हैं इंजेक्शन, छलनी हो जाते हैं। तो पता है डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर सारे इंजेक्शन जो दे सकते हैं वो सलाइन में देते हैं, क्योंकि सलाइन का एक बार इंजेक्शन उसको दिया हुआ है, हाथ में है लगी हुई सुई, तो बार बार प्रिक नहीं होता, प्रिकिंग होता है सलाइन में। मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ एजुकेशन से। बच्चे ने खुद होकर आपका कॉलेज में एडमिशन लिए, मतलब खुद होकर हाथ सामने बढ़ाया है, लगाओ सुई यहाँ, लगाओ सलाइन। मैं ये कॉलेज से ग्रेजुएशन होना चाहता हूँ, तो सलाइन तो उसने अपने हाथ से लगा लिया, उसको बाद में बार बार प्रिक ना करो, छेड़ो मत। अब सलाइन में पूरे इंजेक्शन दो बाकी के। क्लास में बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे, कंट्रोल रहता नहीं रहता कंट्रोल, क्योंकि सारे टीचर अगर इस प्रकार का अप्रोच रखेंगे तो उसको ये नहीं लगेगा ये फलाना टीचर ही फालतू है करके, ये फलाना टीचर जबरदस्ती कर रहा, हमको डांट रहा। ऐसे एक माहौल बनना चाहिए कि दे शुड कम फॉर एनरिचमेंट। तो मुझे लगता है ये था माहौल। मुझे याद है मेरे बचपन में कॉलेज में स्कूल में जब भी हम जाते थे इतना कंपल्शन नहीं था अटेंडेंस का, फिर भी अटेंड करते थे लोग, लोगों को मजा आता था। कॉलेज लाइफ में स्कूल लाइफ में मजा आता था, क्यों नहीं आजकल मजा आ रहा, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं हम ड्राई हो रहे, शुष्क हो रहे पढ़ाने में।
क्लासरूम कंडक्शन अभी बहुत बोरिंग या बहुत ड्राई हो रहा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। वो इसके लिए हम तो जिम्मेदार है, बच्चे भी जिम्मेदार है, बट इसको ब्रेक करना जो है ना, इस परिस्थिति को स्टूडेंट के हाथ में नहीं है, और स्टूडेंट कर भी नहीं सकते ब्रेक इसको, क्योंकि स्टूडेंट मल्टीपल संख्या में है ना, तो एक जैसी सोच 60 लोगों की होंगी नहीं। इसको ब्रेक टीचर कर सकते हैं। टीचर उसमें से 4-5 बच्चों को कॉन्फिडेंस लेके एक ऐसा माहौल है, ऐसा कंडक्शन कॉलेज में करे कि बाकी बच्चों को लगे कि दे आर मिसिंग समथिंग, ऐसा हो सकता है। शायद पार्शियली मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर दिया। Thank you, sir. We'll try on this. थैंक यू। Hello, sir. One राइट, Hello. your guidance. अच्छा, वन बाय वन। Hello. Hello. हाँ, अशोक शिंदे सर बात कर रहे हैं। Sir, I'm Dr. Ashok Shende. हाँ Yes. प्लीज। Sir, in student counseling, you said that हाँ बच्चों ने क्या बोलना है कि मॉर्निंग में खड़े हो उठकर 2 घंटा ऐसा पढ़ना चाहिए कि दे शुड डोंट अगेन रिक्वायर टू रीड अगेन. करेक्ट। But I have also did my PhD in VNIT. So the culture in the VNIT is that you don't prepare for the examination, but you should prepare for your own knowledge. So ultimately, Right. if you get the knowledge, so if you have the knowledge, it is not necessary only you will express your knowledge in the examination. You can express it anywhere. So Correct. in addition to that, they should prepare not for the examination, but they should prepare for their own knowledge. Whatever they are going to learn, they should enjoy that knowledge. Correct, And then they get interest in the reading or something, learning something new thing. राइट। नहीं, बेसिकली क्या होता है, बच्चे रिलेट करते हैं जिंदगी से, जैसे बहुत एनरिच हो गए, ज्ञानवान हो गए, और बाद में जॉब नहीं लग रहा है, तो उनको क्या लगता है ज्ञान का क्या फायदा। तो लर्निंग इन इटसेल्फ इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रपोजिशन। लर्निंग फॉर अ पर्पस इज ए मीनिंगफुल प्रपोजिशन। तो बहुत बार बच्चों को लगता है ये पढ़ाई जो कर रहे पूरे ना, इसका क्या लाभ है। जैसे आप, यू आर कमिंग फ्रॉम VNIT, लेट मी शेयर विथ यू। जैसे स्टूडेंट, दे आर लर्निंग 4 years very rigorously around 40-45 subjects of mechanical engineering. Some students are learning 40-45 subjects of civil engineering, and at the end they realize that the 95% jobs in the computer sector, IT sector, and whatever knowledge they have gathered, even if they are best in that, master in that, nobody looks at them. Nobody looks at what is their score in the respective subject. Nobody looks at their knowledge in the respective subject. They say that, are you ready to work in IT sector? Are you capable? एक aptitude test लेते हैं, उनका रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी देख लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन से उनका इंटरपर्सनल स्किल देख लेते हैं, सिलेक्टेड। पैकेज कहाँ? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। कोर ब्रांच अपनी मैकेनिकल है, सिविल में, उस पर कोशिश करते हैं, बेस्ट नॉलेज है, जहां बहुत अच्छा व्यापार हो सकता है अपने नॉलेज का, पैकेज है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। सो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन में जो सक्सेस है, उससे हम जोड़ नहीं पा रहे एजुकेशन को। तो नेचुरली स्टूडेंट का एक बिलीव जो है ना, फेथ है एजुकेशन पे से हटते जा रहा है। एजुकेशन पे से फेथ हटते जा रहा है, तो कॉलेज पे से भी हटते जा रहा है, फिर कॉलेज के टीचर्स पे भी हटते जा रहा है। वो केवल ज्ञान के लिए एक आधी जिज्ञासा के वक्त वो ज्ञान में बहुत रुचि लेके ज्ञान लेगा, ऐसा इस प्रकार का वातावरण भी आजकल नहीं रहा है। बड़ा डिफिकल्ट है। मतलब बच्चों ने एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, बात पक्की है आपकी, सही है बात। वो ज्ञान कभी ना कभी जिंदगी में काम में आएगा, बट जिंदगी में काम में आने वाली चीज पहले सीखनी चाहिए उसे। होलिस्टिक डेवलपमेंट, Okay, thank you, sir. Thank you. एजुकेशन एनईपी जो अभी है, इससे होलिस्टिक डेवलपमेंट क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता चल रहा है एम्प्लॉयबिलिटी के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सेंट्रिक डेवलपमेंट इन द एकेडमिक स्टडीज। ये थोड़ा नेशनल लेवल पे एक डिस्कशन हुआ है, एनालिसिस हुआ है। Yes, sir. Next is Dr. Ashish Thul. सर, माझा एक प्रश्न आहे. बोला। ऍक्च्युली हे जी सिच्युएशन आहे हे थोडीशी नागरी भागात म्हणजे शहरी भागात जास्त म्हणजे कारगर होऊ शकते, परंतु मी अतिशय ग्रामीण भागात नक्सलाइट एरियामध्ये माझं कॉलेज आहे आणि या कॉलेजमध्ये सर आम्ही ऍडमिशन करायला आम्हाला स्वतः 1.5 ते 2 महिना आम्हाला फिरावं लागते ऍडमिशनसाठी, अशी सिच्युएशन आहे. आम्ही जेव्हा टीचर लोक विद्यार्थ्यांना दिसतात तर विद्यार्थी उठून पळतात, म्हणजे ते त्यांना ऍडमिशन करायचं नाही सर. 12वीच्या मार्कशीट त्या पास होऊन घरी त्यांना छान कव्हर वगैरे लावून त्या फाईलमध्ये ठेवतात आणि आम्हाला आता काम करायचं आहे, पुढे शिकायचं नाही. तर अशा सिच्युएशन मध्ये हे जे मॉडेल आहे तुम्ही सांगितलेलं,
हे आम्हाला म्हणजे याच्यात थोडं गाईड करा असं मला वाटतंय. करेक्ट. आता मी जे पार्टिसिपंट सगळे शहरी भागातले आहेत त्यांनी या प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करायचा आहे अशा उद्देशाने मी जे उत्तर देतोय त्याकडे लक्ष द्या. असं नका समजू की दिस इज नॉट रिलेव्हंट टू अस. कसं आहे, समाजातले सगळे प्रॉब्लेम आपल्याला सगळ्यांना मिळून सॉल्व्ह करायचे आहेत. बघा तुम्ही, एकलव्य पद्धती कुठे झाली निर्माण? शहरात झाली का जंगलात? म्हणजे तुमचं ग्रामीण क्षेत्र जे आहे हे या सगळ्या परंपरांपासून दूर नाहीये ना. सेल्फ स्टडी हा रुरल एरियातही करता येतो, अर्बन एरियातही करता येतो. ग्रुप स्टडीसाठी तुम्हाला थोडंसं प्रयत्न करायला लागतील. कारण जे तुम्ही म्हणता असं कॉलेजमध्ये मुलं येतच नाही तर त्यांचं काय तुम्ही एनरिचमेंट करणार आहे. चॅलेंजेस आर देअर. पण तुम्ही बघितलं का की काही काही टीचर अशा मॅग्नेट सारखे काम करतात. म्हणजे त्यांच्या भोवती घोळका असतो मुलांचा आणि ते काही मुलांकडनं एक्स्ट्रा फी घेत नाही की त्यांचे ट्युशन करून त्याच्याकडनं काही पैसा कमवत नाही. ते मुलांना काहीतरी व्हॅल्यू ॲडिशन देण्यामध्ये प्रसिद्ध होऊन जातात की नाही बा, या टीचरकडे गेलं तर आपण घडतो, आपल्याला कुठेतरी यश मिळतं, आपल्यात काहीतरी परिवर्तन होतं, करिअर होतं. आणि टिपिकली असं लक्षात येईल की काही टीचर मॅग्नेट सारखे काम करतात अर्बन एरियात आणि रुरल एरियात सुद्धा. रुरल एरियात तुम्ही एखाद्या विद्यार्थ्याला बोलून त्याला का बरं कॉलेजमध्ये येत नाही याच्याबद्दल काउन्सिलिंग करा, त्याला विचारा, डिस्कस करा. आता तुम्ही म्हणतात ते डिस्कस करायला तेवढे सुद्धा कॉलेजमध्ये येत नाही तर तुम्हाला उठून जसं ऍडमिशनला जायला लागतं त्यांच्या घरी तसं काउन्सिलिंगला त्यांच्या घरी जायला लागेल. म्हणजे मी म्हणत नाही हे टीचरचं काम आहे, पण आता चॅलेंजेसच तसे तर काय करणार तुम्ही? तुम्ही काही रिकाम्या क्लासरूमला ब्लॅकबोर्डला थोडी शिकवणार आहे तुम्ही. अल्टिमेटली यू नीड स्टुडंट. तर तुम्हाला तर जावं लागेलच ना. म्हणजे असं म्हणतात ना की कुआ नहीं आएगा पैसे के पास, पैसे को जाना पडेगा कुएं के पास. आता तो जो मुलगा आहे त्याला तो प्यासा आहे आणि टीचर हा कुआ आहे, पहिले पटलं पाहिजे ना. त्याला असं वाटच नाही की इथे गेलं की माझी तहान भागेल म्हणून. त्याला ती जाणीव झाली तर नक्की तुमच्याकडे तो येईल. पण तोपर्यंत ते तुम्हाला काहीतरी कॅटर करावं लागेल त्याच्याकडे जाऊन की तू काय करायचं बा आयुष्यामध्ये, तुला तू असं असं करशील तर तुझी जास्त प्रगती होईल, तुझं ऍम्प्लिफाय होईल लाईफ. तू आपल्या मनाने काही न करता दुर्लक्ष करशील अभ्यासाच्या वयामध्ये तर नॅचरली तुझी प्रगती कमी होईल. तुझ्यापेक्षा कमजोर विद्यार्थी शिक्षणाचा आधार घेऊन पुढे जातील, एम्पावर होतील. अशा सगळ्या गोष्टी त्यांना सांगण्याची गरज आहे. आता तुम्ही जर म्हटलं की ते तेवढे ऐकायला समोर येत नाही तर मग नंतर माझ्या समोर या प्रश्नाचं उत्तर राहणार नाही. कारण शेवटी टीचरच्या हातात काय आहे? त्याची बोलण्याची कला, त्याची प्रभावीपणे व्यक्त करण्याची कला, त्याची इतरांना समजून घेण्याची कला, त्यांना समजवण्याची कला. आता इंटरॅक्शनच घडत नसेल किंवा घडून येणं शक्य नसेल तर खरंच म्हणजे टीचरसाठी हा खूपच मोठा चॅलेंज होईल. आणि इतरही शहरी भागातल्या टीचरने सुद्धा लक्षात घ्यायला पाहिजे की स्टुडंट येतच नाही म्हटल्यानंतर आपण एकदमच ज्याला म्हणतात ना की निशस्त्रच होऊन जातो. Yes, sir. सर आम्ही एक मध्ये बोलतो, सॉरी. आम्ही ऍडमिशनला जातो सर, तेव्हाच आम्ही त्यांना खूप इन्करेज करतो. म्हणजे ऍडमिशन करण्यासाठी एवढे इन्करेजमेंट आवश्यक असते त्यांना की तेव्हा कुठं आम्ही ते 100 ऍडमिशन करू शकतो. म्हणजे खूप जास्त एका विद्यार्थ्यांकडे आम्हाला जवळपास 10 ते 15 वेळा जावं लागते तेव्हा ते ऍडमिशन फायनल होते. राईट. नाही बरोबर आहे. चॅलेंजेस आर देअर. शेवटी कसं आहे, एज्युकेशन कोणाला देऊ शकतो आपण? जो एज्युकेशन घेण्याला इंटरेस्टेड आहे. आणि म्हणून माझं म्हणणं आहे की विदाउट टीचर स्टुडंट शुड बी एबल टू मॅनेज 90% सेल्फ स्टडी अँड ग्रुप स्टडीनी. तर ते गावखेड्यातले लोक ते 100%च मॅनेज करतो म्हणतात आम्ही विदाउट टीचर. कारण त्यांना लेव्हलची नॉलेजची हवी असते ती 100% नको असते. त्यांना 60-70% नॉलेज मिळालं तरी भरपूर असतं आणि 90% पर्यंत नॉलेज त्यांना विदाउट टीचर मिळू शकतं. तर ठीक आहे ना, मग टीचरचा रोल त्यांना धरत नाही, ते त्यांच्यासाठी सिग्निफिकंट आहे म्हणून होतं ना सर. दिस हॅपन्स. Sir, हा, थँक्यू सर. many times it happens that there are few faculties who continuously demotivate students, pulls them down. राईट. So we can help students to deal with such faculties. नाही. आता एखाद्या टीचरला why a teacher should have incentive to demotivate student? It doesn't have incentive. Typically, why teacher are indulging into demotivating student? Because they don't want to conduct the classes. If student come, they have to conduct the class. So they discourage student to such an extent that students should not come to the college at all. So that they continue to get salary and the students, if the student come, then they have to teach. If student come, then they have to solve the difficulty of the student. So demotivation, मुझे नहीं लगता कि demotivate करने के लिए कोई खास मोटिव होता है. So they want non conduction. जो टीचर्स को नॉन कंडक्शन लगता है जनरली ऐसा कब कहाँ होता है पता है मैडम? जो अनएडेड कॉलेज है वहां नहीं होता है ऐसा. जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है भी बच्चे आए या ना आए उनकी सैलरी बराबर 1 तारीख को मिलने वाली है. मतलब दे आर इनडिफरेंट अबाउट एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट. दे कैन ओनली अफोर्ड डूइंग ऑल दिस थिंग.
आप अनएडेड प्राइवेट कॉलेज के जो टीचर है बात करके देखो उनको, कैन दे डिमोटिवेट स्टूडेंट फ्रॉम स्टडीज? दे कैन नॉट. स्टूडेंट नहीं आए तो फी नहीं आएंगी, फी नहीं आई तो उनकी सैलरी नहीं आएंगी. सी अल्टीमेटली फॉर एनीथिंग टू हैपन one should be motivated to make it happen. Otherwise, most of the people, like there are 3 ways of reflecting to any situation. One is let it happen. हो रहा होने दो, मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा. दूसरा watch it happen. That means carefully देखूंगा मैं इसमें से क्या सीखना है, सीखूंगा, अगले समय में अपने अनुभव को काम में लाऊंगा. पहला let it happen मतलब indifferent. दूसरा watch it happen, careful, but again not interfering. और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है मेक इट हैपन. तो टीचर को मेक इट हैपन में रोल में आना पड़ेगा. काफी टीचर लेट इट हैपन है, बच्चे कॉलेज में नहीं आ रहे, मास बंक है, लेट इट हैपन, चलने दो, कुछ नहीं होता. कुछ लोग वॉच इट हैपन, अरे नहीं कल भी नहीं आए, परसों भी नहीं आए, पिछले हफ्ते भी नहीं लड़के आए, ऐसा नहीं चलेगा, कुछ तो भी होना चाहिए. सो दे आर सेंसिटिव टू इट बट दे डू हार्डली एनीथिंग फॉर दैट. एंड सम पीपल आर मेक इट हैपन, अरे ऐसे कैसे नहीं आ रहे बच्चे कॉलेज में, हुक और क्रुक मैं उनको मतलब साम दाम दंड भेद करके मतलब एक ऑब्जेक्टिव करके लूंगा कि दे शुड कम टू द कॉलेज. तो ये तीनों प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं. तो और आपने जब कहा कुछ लोग डिमोटिवेट करते, तो ये तो सब जगह समाज है ना, सब जगह होते हैं, अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं. ये इसी में से निकलना है बाहर ना. हम कोई अलग थोड़ी ना. टीचर जो समाज में है वो कॉलेज में होता है, टीचिंग में आता है. सारे सद्गुणी लोग समाज में होते, तो टीचिंग में भी सारे सद्गुणी लोग आते हैं. ये तो मिक्स रहेगा सब जगह. Next, Neeta Shinde. Yes, sir. Sir, I have explained the topic and asked them to make a poster. All students they make a poster, but one of them, while she want to represent it, she didn't come to college. Okay. तो वैसे में क्या करना चाहिए? नहीं, एकदम सिंपल. Let her create a feeling that she is missing something. जो लोग आए उनका इतना डिस्प्रपोर्शनेट उनका सराहना करो, उनकी इतना उनका प्रेस करो कि जो मिस किया घर में बैठी लड़की, उसको लगना चाहिए अरे बाप रे उसने तो जिंदगी में कुछ भी नहीं पाया. सी अल्टीमेटली क्या होता है, ये बीरबल की लाइन है ना. बीरबल को अकबर ने कहा था कि भाई ये मैंने लाइन निकाली है, इसको छोटी करो, उसको हाथ ना लगा. तो बीरबल ने उसके बाजू में एक बड़ी लाइन निकाली और बादशाह को कहा देखिए आपकी लाइन छोटी हो गई. तो ये बच्चों को ये बीरबल की लाइन निकालना बहुत जरूरी है कि भाई तुमने प्रेजेंट नहीं किया, तुमने प्रेजेंटेशन नहीं दिया, एग्रीड. ये बाकी ने जो दिया है ना, इतना डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़ा कर देना वो प्रेजेंटेशन को कि जिसने छोटा दिया है या जिसने दिया ही नहीं है उनको शर्म आनी चाहिए. और ये होता है मैक्सिमम बच्चों में. एजुकेशन ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से होता है. उसकी कमीज मेरे कमीज से सफेद क्यों, ये इस पे चलती है दुनिया पूरी. तो डेफिनेटली वी कैन यूज दिस. निराश होने की जरूरत नहीं. ऐसा कुछ ना कुछ लोग रहेंगे ना कि जो आप कुछ भी करो. जब मैसेज भेजा कि ठीक है कोई बात नहीं आप नहीं, तो तब आए सर वो कॉलेज, नहीं तो अटेंड ही नहीं कर रहे थे. इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस. नहीं, आप देखिए कुछ एक्सेप्शन को आपने छोड़ देना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए. लेकिन आपकी उपयोगिता 70-80% से 90% तक लोगों को होनी चाहिए. ऊपर के 10% जो भी बच्चे हैं वो ज्यादा उसमें दिमाग मत लगाओ. क्या होता है हम उनकी तरफ ही फोकस करते हैं, और फोकस क्या करते, उनकी बात मन में सोचते तो हम डिस्करेज हो जाते हैं. तो वो चक्कर में ना पड़ते हुए उनको इग्नोर करो. सी ऑलवेज एनी लॉ इज प्रूव्ड बाय द एक्सेप्शन. दे आर एक्सेप्शन, लेट देम बी एक्सेप्शन. बट इन जनरल 90% को आपके सारे जो एक्सपेरिमेंट्स है ग्रुप स्टडी के, कलेक्टिव कोई असाइनमेंट देने के, बिल्कुल कारगर होते हैं और स्टूडेंट एंजॉय इट. और एट द एंड ऑफ द ईयर द पर्सन हु इज एब्सेंट ना, कंटिन्यूअसली एब्सेंट, डेफिनेटली दे विल फील दैट दे हैव मिस्ड समथिंग थ्रू आउट द ईयर. Yes. Thank you. Next, Jawahar. नमस्कार. Jawahar sir. हेलो हाँ राइट. सर मैं होगा ठीक है, हाथ भर के एक जन बोला, एक जन बोलिए. जवाहर सर आप बोलिए पहले. Yes, sir. Sir, I have a question that is there Please be louder. आपकी वॉइस थोड़ी कम आ रही है. You come closer to mic actually. हाँ, bit louder. हाँ. Sir, should be there a feedback mechanism in between student and teacher to improve the learning and teaching process, sir? नहीं, दो चीजें. एक फीडबैक होता है फॉर्मल और एक फीडबैक होता है इनफॉर्मल. फॉर्मल फीडबैक में देखिए हम कोई भी व्यक्ति से मिलते हैं और कोई बात होती है, मान लो किसी ने कोई परफॉर्मेंस किया, कैसा है परफॉर्मेंस, हम कभी भी मुंह पे नहीं कहते बकवास था करके. तो इसको कहते हैं अच्छा फीडबैक. तो हम अच्छा फीडबैक तो जगह जगह से सुनते हैं. टीचर के हाथ में मार्क्स रहते हैं तो सारे स्टूडेंट अच्छा फीडबैक देते हैं.
हमें अच्छे फीडबैक से इधर उधर भटकना नहीं है. वी मस्ट बी इन सर्च ऑफ ट्रू फीडबैक. हमें सच्चा फीडबैक चाहिए. तो सच्चा फीडबैक आता है इनफॉर्मल चैनल से. तो इनफॉर्मल चैनल से आप सच्चा फीडबैक लीजिए. वो अच्छा भी हो सकता है और कभी कभी बुरा भी हो सकता है, लेकिन सच्चा तो होता है कम से कम, जिससे आपको अपना टीचिंग इंप्रूव कर सकते हैं. फीडबैक बिल्कुल मिलता है. आप गवर्नमेंट की जो टेक्निक्स है, साल के एंड में फीडबैक लेने की जो फॉर्म्स है, उस पर ज्यादा निर्भर ना रहो. वो इतना फॉर्मल होता है और इतने सारे क्वेश्चन उसमें पूछते हैं, और ऐसे समय बच्चों को दिया जाता है कि जो बच्चा मूड में नहीं होता है फीडबैक देने के, सभी टीचर का सभी सब्जेक्ट का दन 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 15 मिनट में फीडबैक देके नक्की हो जाता है. दैट मीन्स ही हिमसेल्फ इज नॉट सीरियस अबाउट दैट फीडबैक. तो फीडबैक से ज्यादा उपलब्धि नहीं होती है, ये खाना पूर्ति है. लेकिन इनफॉर्मल चैनल अगर आपके हैं तो बिल्कुल स्टूडेंट बताते, सर आपका बहुत बढ़िया टीचिंग है सर, लेकिन पिछले बेंच तक आपका आवाज नहीं आ रहा. सर आपका बढ़िया टीचिंग है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे आप लिखते तो हम वो आपने लिखा हुआ है ना, आपके वजह से हमें दिखाई नहीं देता. तो पूरा ब्लैक बोर्ड ओपन करके आप साइड में खड़े हो जाइए, हमको लिखने का मौका दीजिए. ये छोटे छोटे फीडबैक है ये, लेकिन ये फीडबैक बच्चों को एनकरेज करेंगे तो आपको देंगे, वो बिल्कुल देंगे फीडबैक. और सच्चा फीडबैक देने में बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, देते हैं वो. लेकिन जो डिप्लोमेटिक बच्चे होते हैं, वो टीचर को नाराज नहीं करना, सेशनल के मार्क टीचर के हाथ में, इंटरनल टीचर के हाथ में, प्रैक्टिकल के मार्क टीचर के हाथ में करके वो हर बार आपको अच्छा फीडबैक देंगे. तो ऐसा तो होता नहीं ना, हर परफॉर्मेंस अपना अच्छा होता ही नहीं ना, कभी ना कभी तो कुछ तो गड़बड़ हो जाती. तो वो गड़बड़ बच्चे नहीं बता रहे, तो आपने सजग होना चाहिए. ये बार बार मुझे अच्छा फीडबैक दे रहे, मतलब ये शायद सच्चा फीडबैक नहीं है. तो इनफॉर्मल चैनल को ओपन करना जरूरी है. जी सर. Okay, sir. Thank you so much, sir. आशीष गर्ग. नमस्कार सर जी. नमस्कार. सर जी, पढ़ाते वक्त मुझे मीडियम की दिक्कत आती है, क्योंकि मेरी सारी पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई है, राइट और राइट, बच्चे कहते हैं कि आप प्योर इंग्लिश में पढ़ाइए. बिल्कुल तो बिल्कुल. इसको कैसे सोल्व करें सर? नहीं, बच्चों को प्योर इंग्लिश चाहिए नहीं, मैं बता रहा हूं आपको. वो तो उन्होंने देख लिया कि आपको इंग्लिश पे कमांड अच्छी नहीं है, तो आपको रॉन्ग कॉर्नर में खड़े करने के लिए बोलते कि मेरे को इंग्लिश में पढ़ाओ. अपने में से कोई मातृभाषा इंग्लिश वाला है क्या? कोई इंसिस्ट नहीं करेगा इंग्लिश में पढ़ाओ करके. सवाल क्या होता है, स्टूडेंट जनरली दे डोंट एक्सेप्ट टीचर एज ए टीचर. तो टीचर के वीकनेसेस देख के उसके ऊपर हैमर करते. शुरू में तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते. टीचर को टीचर करके एक्सेप्ट होने में पहले 6 महीने लग जाते. मैं जनरल कह रहा हूं, आपकी पर्टिकुलर केस मुझे नहीं पता. लेकिन इंग्लिश को कोई मतलब नहीं है ना. आप जापान में जाइए तो जापानीज लैंग्वेज वहां बोलते, जर्मन में जाइए तो जर्मन लैंग्वेज बोलते, फ्रांस में जाइए तो फ्रेंच लैंग्वेज वहां बोलते. तो दुनिया भर में जो बेस्ट कंट्रीज हैं, उनमें लैंग्वेज का कोई हवा नहीं है. ये तो भारत ही केवल है अंग्रेजी भाषा की हवा कर रहा है. ना तो हमारी मातृभाषा अंग्रेजी है, ना तो राष्ट्रभाषा अंग्रेजी. तो अंग्रेजी ये जीवन की उत्कृष्ट भाषा नहीं है, ये आवश्यक भाषा करके. दिस इज कंस्ट्रेंट ऑफ लाइफ, नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ. कहते हैं कि कम्युनिकेशन में क्या देखना चाहिए, कम्युनिकेशन में देखना चाहिए कि मन में विचार आ रहे कि नहीं, मतलब वेदर ए पर्सन इज एबल टू थिंक और नॉट. दूसरी स्टेज में क्या देखते हैं, वेदर इज एबल टू एक्सप्रेस इन हिज मदर टंग और नॉट. और तीसरे स्टेज में आता है वेदर इज एबल टू एक्सप्रेस इन इंग्लिश और नॉट. तो इंग्लिश तो 3 चीजों में से एक चीज है. कभी कभी बच्चों को पूछा ना, सर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं ना इसलिए गड़बड़ है. अरे चल छोड़, मातृभाषा में बता, तुझे जो भी बताना मातृभाषा में बता. पता चला मातृभाषा में भी बता नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके मन में विचार ही नहीं आ रहे. एंड डेफिनेटली वो फिर भाषा का वो शेल्टर ले रहा है. तो आप बिल्कुल बिंदास रहिए. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही है, कोई स्वाभिमान की बात है. मैं इसको अभिमान स्वाभिमान इसमें जोड़ना नहीं चाहता हूं. मुझे लगता है कि अंग्रेजी आपको अगर जरूरी है, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना है, अगर उनका ऑफिशियल मीडियम अंग्रेजी है, तो धीरे धीरे और निश्चित रूप से अंग्रेजी पे भी कमांड लाना आप सीखो. मराठी भाषा, हिंदी भाषा, ये भी तो हमें जन्म से नहीं आती थी ना. किसी ने हमें अ ई सिखाया, किसी ने बाद में हमने ABCD सिखाया. तो ये जन्म के बाद ही सीखी हुई लैंग्वेज है सारी. तो अंग्रेजी भी आ सकती है. मैंने देखा कि प्योर मराठी मीडियम में पढ़े हुए गांव खेड़े के लोग, गांव खेड़े के लोग प्योर मराठी मीडियम में जिनकी पढ़ाई हुई, आज एजुकेशन लेके अमेरिका में सेटल हुए 25-25 साल से, पूरी जिंदगी प्योर इंग्लिश में बात करके चल रही है उनकी. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब अंग्रेजी कोई हवा वाली चीज नहीं है. लेकिन देखिए, जरूरत अगर है तो बच्चों को ये मौका ना दे कि भाई अपने टीचर थोड़े अनकंफर्टेबल है अंग्रेजी में. ये बच्चे मौका करके उसी पे वो कॉर्नर करने की कोशिश करते टीचर को. तो ये होता है. यस. नरीन मेरिक.
हेलो सर। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे पेरेंट्स जॉब ओरिएंटेड ज्यादा नहीं, वो सिग्नल चाहते सिग्नल हैं, टूट रहा, नहीं प्रेफरेंस समझ रहा दी हूँ। जाए। हेलो, नवीन मैं सर, समझ आपकी नहीं रहा, आवाज सिग्नल ब्रेक हो कंटिन्यू रही टूट है। रहा। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सर मैंने मैसेज में टाइप कर रखा है एक अपना मिनट, क्वेश्चन। ओके ओके। आप फिर से उसको उजागर करिए मैसेज में क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आके सामने सामने जा रहे हैं ना सबके मैसेजेस। ठीक आहे सर, मी बघते कोणता क्वेश्चन हाँ आहे, हाँ, राइट तोपर्यंत राइट। आपण पुढचा क्वेश्चन घेऊया. हाँ, एक मिनट, इट इज इन फ्रंट ऑफ मी। हा. कैन यू रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ सोसाइटी ऑन स्टूडेंट माइंडसेट एंड लाइफ? अरे रोल ऑफ सोसाइटी बहुत ज्यादा है। आज सोसाइटी में हर जगह पूरी एडिक्शन चल रही है, नशा चल रहा है, तंबाकू चल रहा है, सिगरेट चल रही है, ड्रग चल रही है, तो स्टूडेंट पे अपने आप आ रहा है। तो असर तो अच्छा भी चल रहा है और बुरा भी चल रहा है असर सोसाइटी का। सोसाइटी में क्राइम है, आज अमेरिका में देख रहे हैं ना, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे आके दन 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 पिस्तौल से 10 लोगों को मार रहे। ये उनके घर में थोड़ी होती पढ़ाई, ये तो सोसाइटी में हो रही पढ़ाई। इतना होने के बावजूद एक अच्छे, सभ्य, स्थिर, हेल्दी सोसाइटी की रचना हमें करनी है एज ए टीचर। चैलेंजेस तो है ही। सोसाइटी ने क्या करना चाहिए बच्चों के लिए, ये तो खुद होके, मतलब कॉग्निजेंटली सोसाइटी नहीं करती। सोसाइटी ऐसी एंटिटी है जो हो रहा हो, लेट इट हैपन वाली उनकी एक टेंडेंसी होती है सोसाइटी की। टीचर की टेंडेंसी मेक इट हैपन होना चाहिए कि ये पूरे बदलाव के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मुझे करना है। एक आर्य चाणक्य ने मन में ले लिया तो चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पे बिठाया। राज्य की अभिलाषा नहीं थी, ये गलत सरकार, अन्य पूर्ण सरकार जो है उसे मुझे बदलना है। तो एक शिक्षक ने राज्य सत्ता को पलट के रख दिया था। इतनी ताकत शिक्षक की है। शिक्षक ने इधर उधर नहीं देखना चाहिए कि समाज कुछ करे, ये कुछ करे, वो कुछ करे। ये समाज को हम कैसे बदल सकते हैं, ये भी ताकत शिक्षक की है। शिक्षक को कोई अच्छी नजर से, बहुत बड़े नजर से देखता नहीं है। एक संस्कृत सुभाषित है, भो दारिद्र्य नमस्तुभ्यम सिद्धो हम तत्प्रसादता पश्याम्य हम जगत सर्वम नमाम पश्यति कश्चन। ऐसे कहते हैं, ये कह रहा है कि ये दारिद्र, पॉवर्टी जो है, गरीबी है, उसके प्रसाद के लिए मैं सिद्ध हूं। मतलब मुझे गरीबी आई तो मैं तैयार हूं। क्यों? पश्याम्य हम जगत सर्वम, मैं पूरी दुनिया को देख सकता हूं। नमाम पश्यति कश्चन, पूरी दुनिया मुझे नहीं देख सकती। टीचर का भी ऐसे ही है, वो पूरे विश्व को देख सकता है और पूरा विश्व उसे नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि देखने योग्य नहीं समझता। उसको समझता है कि ये क्या है, फालतू आदमी, टीचर क्या बिगाड़ लेंगे हमारा, क्या सुधार लेंगे, ये कोई ज्यादा प्रभावी व्यक्ति नहीं है समाज का। ऐसा समाज जब देख रहा है तो समझो यही मौका है कि आप कुछ अच्छी चीजें करोगे अपने कॉलेज में, स्कूल में, तो समाज अनदेखी करेगा उसको, और एक प्रभावी रीत्या आप समाज का परिवर्तन कर सकते हैं। कि जैसे चाणक्य ने पूरा सत्ता परिवर्तन किया था, राज्य परिवर्तन किया था। क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं कॉलेज में, स्कूल में, ये सोसाइटी अनदेखा कर रही है। उनको लगता है इससे क्या बड़ा होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मतलब वो उसको निग्लेक्ट कर रही है। इसका मतलब आपका जो जर्नी है अनहर्डल्ड है, आपको कोई तकलीफ नहीं देगा आप कॉलेज में क्या पढ़ा रहे, क्या नहीं पढ़ा रहे। एक अच्छे समाज के लिए दुष्प्रवृत्तियों को निपात करने के लिए जो भी आपको करना पड़ेगा, जो सद्गुण बच्चों में लाने पड़ेंगे, उसके लिए जो भी करोगे आप, समाज आपको करने देगा। ये मत सोचो कि समाज कुछ करेगा। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है ना कि स्टूडेंट के माइंड सेट को बदलने के लिए समाज क्या करेगा। समाज कुछ नहीं करता है, वेरी डिफिकल्ट। कोई अपनी जिम्मेदारी समझता ही नहीं है। ये मेन समाज करके ऐसी कोई एंटिटी नहीं है कि भी बच्चों का अच्छा मोल्डिंग करना कोई जिम्मेदारी। वो तो मोल्डिंग के लिए स्कूल कॉलेज की तरफ देख रहे हैं ना। पेरेंट्स को पूछो आप, अच्छे संस्कार क्यों दे रहे? बोले संस्कार तो स्कूल कॉलेज में देने चाहिए, हमको तो समय ही नहीं है। माँ भी जा रही जॉब को, बाप पिताजी भी जा रहे जॉब को। मतलब बच्चों के संस्कार किसने करने चाहिए? माँ बाप ने करने चाहिए। माँ बाप के सामने समय नहीं है, घर में दादा दादी नाना नहीं है, किसने करने चाहिए संस्कार? तो स्कूल कॉलेज में ऐसी एक सामाजिक सबकी अपेक्षा है। संस्कार किसने करने चाहिए? समाज ने। ऐसी अपेक्षा नहीं है। समाज की तरफ कोई अपेक्षा से नहीं देख रहा कि दुनिया संस्कारित हो। ये जिम्मा समाज का पकड़ ही नहीं रहे, माँ बाप भी खुद का नहीं पकड़ रहे। अब तो सब आशा से देख रहे स्कूल और कॉलेज की तरफ कि मेरा बच्चा अच्छा बने, इसकी जिम्मेदारी मैं अच्छे स्कूल में डालूंगा, अच्छे कॉलेज में डालूंगा, मतलब मेरा बच्चा अच्छा बनेगा। एक इनबिल्ट एक्सपेक्टेशन उसके अंदर है। यस सर, वेरी ट्रू. दीप्ति मैडम, दीप्ति चौरसिया, यू हैव रेज्ड योर हैंड. हाँ सर, नमस्ते. हाँ नमस्ते. सर, हमारे महाविद्यालय में एक समस्या है
कि बच्चे बोलते हैं जैसे जो स्पोर्ट्स का जो पीरियड है वो 4 बजे से लगता है, बिल्कुल तो बच्चों को ये समस्या है कि मतलब पहले लगे और उस टाइम पे क्लासेस का टाइम रहता है। नहीं, अभी देखिए सभी बच्चों के लिए दिन भर स्पोर्ट्स करेंगे तो कॉलेज कब होगा? सेकेंडली क्या होता है, स्पोर्ट्स 1 घंटा किया, 10 से 11 स्पोर्ट्स किया तो बच्चे पसीना पसीना हो जाते हैं, तो 11 से 12 का पीरियड नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स पीरियड आखिरी रखने के लिए ये कुछ मिनिमम चीजें हैं। मैं आपसे सहमत हूं, मैं खुद अपनी जिंदगी में बेस्ट स्पोर्ट्समैन रहा हूं, बहुत सारे खेल खेले हुए। ये सारी चीजें 10 to 5 के आउटसाइड करनी पड़ती है हर जगह। सवेरे 10 के पहले और शाम को 5 के बाद खेलकूद होता है। अब जो पीरियड है, पीरियड में क्या करते हैं हम 100% बच्चों को खेलने के लिए हम कंपेल करते हैं। 100% बच्चे खिलाड़ी नहीं होते ना, कुछ लोग खिलाड़ी होते हैं, कुछ लोग देखते हैं गेम। एक सज्जन को पूछा था मैंने कि भाई आपकी क्या हॉबीज है, बोले क्रिकेट। बोले क्या बॉलर है क्या बैट्समैन है? नहीं, बोले टीवी पे देखता हूँ। वह हंसने का विषय नहीं है, टीवी पे देखना ये भी एक खेल में शरीक होने का तरीका है, क्योंकि वो एक अच्छे दर्शक है, रसिकता से देखते हैं गेम को। वैसे स्कूल कॉलेज में भी काफी बच्चे होते हैं, वो खुद नहीं खेलते, बाकी बच्चों को खेलते हुए देखना चाहते हैं। मतलब ग्राउंड से हटके घर नहीं जाते, वो ग्राउंड के आजू बाजू में खड़े रहते देखने के लिए। मतलब दे आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स बट वॉचिंग स्पोर्ट्स, नॉट प्लेइंग द स्पोर्ट्स। तो आखिरी पीरियड होगा तो उसके लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार खेलने का मूड मन में आने का है, उसके बाद में पीरियड नहीं हो सकता कोई। पीरियड थोड़ी सीरियस चीज है, तो एक बार हल्का मन होने के बाद फिर से सीरियस में नहीं आता है। यस सर, वो बदलना मुश्किल है। तो सर बहुत सारे बच्चों ने आना ही बंद कर दिया कॉलेज में। नहीं, देखिए छोटे बच्चों को पूछो क्या करना, छोटा बच्चा क्या करना चाहते हैं बताइए? छोटा बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता है, खेलना चाहता है। तो खेलने के लिए बच्चे आना बंद किए, ये तो मैं मानता ही नहीं हूँ। शायद उनको वो खेलने का एक पीरियड 4 से 5 करने के लिए 10 से 4 वाले पीरियड करने पड़ते होंगे कंपलसरी। तो बच्चों को तो डर है, और बच्चों को तो जो जिसको कहते हैं ना अनुत्साह है, वो तो एकेडमिक पीरियड के बारे में है, स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ी अनुत्साह है उनको। लेकिन हम कंपलसरी करेंगे ना 4 से 5 सबको, तो क्या होता है घर जाने की भी ओढ़ रहती है ना सबको, घर जाएंगे करके, तो उसके अंदर उनको बोले बंक कौन सा कर सकते पीरियड? स्पोर्ट्स का बंक कर सकते इजीली, करो स्पोर्ट्स का बंक। माँ बाप भी ऐसे है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों की होनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई से उसका ध्यान नहीं हटना चाहिए। बच्चा कहता है मेरा स्पोर्ट्स का पीरियड था, मैं घर आ गया, हाँ अच्छा किया बेटा, तो पढ़ाई करना चाहिए। मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या अपने आप होंगी? उसके लिए समय देना पड़ेगा, उसके लिए प्रोत्साहन देना पड़ेगा, और कभी कभी उसके लिए कंपेल करना पड़ेगा। उम्र नहीं है बच्चों की कि उनको सब जिम्मेदारी समझे, उनको जताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसके साथ। ओके, थैंक यू सर। ठीक है सर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग रुकते हैं क्योंकि नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन ज्वाइन किए हैं। सो सर सेशन बहुत अच्छा रहा, सभी पार्टिसिपेंट्स के क्वेरीज भी आपने अच्छे से सॉल्व किए हैं। सो आई एक्सटेंड माय हार्टफेल थैंक्स टू यू सर for engaging and informative as well as motivating session for all the participants. Thanks all the participants for making it interesting and interactive. Yes sir, बहुत अच्छे सवाल पूछे इन्होंने भी। Thank you so much sir once again. Have a nice day sir. Thank you. Right. Friends, you please proceed for 5 minutes refreshment break. आप लोग 5 मिनट का रिफ्रेशमेंट ब्रेक लीजिए, लेकिन तुरंत ज्वाइन रहिए, मीटिंग में ही रहिए, मीटिंग को लीव मत करिए। हम नेक्स्ट सेशन इमीडिएटली शुरू कर रहे हैं, सो डोंट लीव द मीटिंग, जस्ट टेक 5 मिनट्स रिफ्रेशमेंट ब्रेक, डोंट लीव द मीटिंग। Yeah. Good afternoon, Dr. Payal madam.